lecture 1 was scheduled at 5 p.m. today, and I think it's 5 already. And let's wait for 2 to 5 minutes for other people to join, and after that we will start. Enter your target here in the comment box. Tanya is saying that 22. Okay. Pradipta Kumar Sahu is also saying 22. What about others? Shubham, Anjana, they are also saying the year 2022. Okay. We have people for the year 23 as well. Okay. Okay. That's good. So majority of you are going to appear in the year 2022, right? So okay, I think this is the appropriate time to start with your preparation, and you know that it's a 1 year journey to complete this whole UPSC journey, right? And you need to be very precise with your preparation and very smart as well. Okay, you must know what kind of syllabus is there, what subjects are there, and how to deal with all the subjects so that you don't miss anything in the end, right? So how many subjects you guys have done till now, or it's just a or it's just a beginning? Ma'am, we have just started in 2-3 days back. Yeah, okay. So what are your background? Basically, I want to know the background. What is your educational background, like science background, and the arts, the commerce, or which background are you from? MBA, BTech, engineering, third year? Okay. So we have basically a different kind of educational background people here, and we know that. So okay, Shivani is BA history honors. That's nice. BCom honors. Okay. So history, we know that कि एक ऐसा subject है that is related with every other subject. ठीक है ना? तो it is that subject जो हर बाकी subject से relate करता है. कैसे? बेसिकली हर एक चीज की, हर एक अदर डिसिप्लिन की, और इवन अबाउट एनी थिंग और एनी पर्सन एज वेल, हर एक की क्या होती है, हिस्ट्री तो होती ही है. ओके, सिमिलरली हिस्ट्री इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट जो हमको कवर करना होता है इन अ यूपीएससी. ओके, तो क्या मुझे कोई एक बता सकता है कि हमें क्यों पढ़नी पड़ती है हिस्ट्री? हम क्यों पढ़ते हैं हिस्ट्री इन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, और स्पेशली जो इंडिया का टफेस्ट ग्रेजुएट लेवल का जो एग्जाम है, दैट इज यूपीएससी. व्हाई आर वी स्टडीइंग द हिस्ट्री सब्जेक्ट फॉर दैट? ये तो हो चुकी है ना ये चीजें, जो भी ये पास्ट इवेंट्स हैं, that all are have been done now. So then why are we going to study these historical events and everything? Do you have any idea? To avoid miserable situation in future like happened in history. Okay. What about others? Any idea? One author said that history repeats itself. That's why the situation that has been faced by our ancestors in the past, this situation may be faced by us. So what we'll do, what they have done correct or they have done incorrect, so we can rectify it. Yeah, So exactly. Ma'am? He also commented that we learn from our past experiences. This is also nice. Yes, anyone? Ma'am, it also allows us to interpret the future also, no ma'am? Yeah. How it allows us to do so? Like it is history is like a bridge between past and present, no ma'am? Yeah. When we learn about that, we'll interpret the future. Okay, that's good. So basically, देखो, we always have a problem with the history subject. Usually, I'm not saying all of the students have this kind of conflict in their academic journey, but mostly or usually people have कि
ये क्यों हमें पढ़ाई जाती है हिस्ट्री, जबकि ये चीजें हो चुकी हैं, वो राजा एम्परर्स और वट एवर द बैटल एंड वॉर्स वर, वो जो होना था वो हो चुका है. व्हाई आर वी स्टडिंग राइट नाउ एंड व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ दैट, यू नो. एंड बेसिकली अगर हम किसी गवर्नमेंट जॉब के लिए जा रहे हैं तो उसमें इस चीज का क्या है, क्यों कर रहे हैं हम ये. तो before proceeding with the subject or the requirements of the subject as per your the exam, we must know that कि हम history पढ़ने क्यों वाले हैं for this competitive examination, right? So basically whenever you are going to do your job, okay, जैसे आप ये एग्जाम क्लियर कर लेते हैं एंड आप आईएएस ऑफिसर्स बन जाते हैं और आपको कोई अलग अलग है ना पोस्टें मिलती हैं, ओके. तो आप एक पर्टिकुलर रीजन में, ठीक है, आप पर्टिकुलर एक जगह पे आप की पोस्टिंग होती है. हो सकता है वो आपका होम टाउन ना हो, या फिर आपका होम स्टेट ना हो, या फिर कोई और स्टेट हो, या कोई और जगह हो जहाँ का कल्चर या चीजें अलग हो आपकी जगहों से, राइट. फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप यू वर फ्रॉम पंजाब एंड योर पोस्टिंग जो आपकी हुई है वो बिहार में हो जाती है. तो यू कैन इमेजिन जो दोनों रीजन्स का जो हिस्टोरिकल पास्ट रहा है, ठीक है, हिस्टोरिकल इवेंट्स रहे हैं, वो एग्जैक्टली डिफरेंट होंगे, ठीक है. एंड वी नो दैट कि जो हमारा कल्चर होता है वो एक दिन में नहीं बनता है, ये बिल्कुल हमारे पीछे से चलता आ रहा होता है, राइट. एंड आप देख सकते हो कि पंजाब का कल्चर बिल्कुल डिफरेंट होगा, बिहार का कल्चर बिल्कुल डिफरेंट होगा, राइट. और इफ यू आर एन आईएएस ऑफिसर इन दैट प्लेस, यू विल कम टू नो कि अच्छा इन द पास्ट इवेंट्स यहाँ पे बहुत ज्यादा ये चीजें हुई हैं कि बहुत डिस्क्रिमिनेशन हुआ है यहाँ पर, ठीक है, जमींदारों ने बहुत डिस्क्रिमिनेशन किया है, एक्सप्लॉइट किया है पीजेंट्स को, right. So you will take care of these things whenever you're going to formulate your policies, okay. And along with कि यहाँ पे इस लोकेशन के क्या पर्सपेक्टिव्स रहे हैं, ठीक है, कि अगर यहाँ पे वॉर हुई थी तो उस वॉर का यहाँ के लोगों के ऊपर क्या असर है, ठीक है, वो भी हमें पता होगा, राइट. तो मतलब ये सब चीजें होती हैं जो हिस्टोरिकल इवेंट्स हमें बताते हैं. एक्चुअली आई थिंक सभी किसी ने अभी बोला था कि इट हेल्प्स इन इंटरप्रिटेटिंग द फ्यूचर, राइट. So actually it helps in formulating the policies. It will help you whenever आप एक आईएएस ऑफिसर बनोगे और आपको वहाँ का जो रीजन है वो संभालना है, वहाँ की पॉलिसीज को फॉर्मुलेट करना है, वहाँ के लोगों को देखना है, एडमिनिस्ट्रेशन चलाना है. फॉर दैट यू मस्ट हैव द हिस्टोरिकल नॉलेज. एम आई क्लियर विद दिस पार्ट, राइट. तो ऐसा नहीं है कि वी आर वेस्टिंग अ टाइम, व्हाई आर वी स्टडिंग दिस फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, कोई फायदा नहीं होने वाला है, नहीं, ऐसा नहीं होता है, ठीक है. whenever you're going to formulate policies or the programs and rules and regulations, these things will help you a lot, okay. so this is one of the major reason कि आपको हिस्ट्री पढ़ना चाहिए, तभी ये सिलेबस में रखा गया, okay, right. So, मुझे ये बताओ आप लोगों में से किस किस ने हिस्ट्री का सिलेबस चेक किया है, किसने हिस्ट्री का सिलेबस पढ़ा है. ओके, चलो ये बता दो. Ma'am, I've gone through the syllabus. Ma'am, before that, sorry to interrupt you, but ma'am, is this the first lecture? First lecture, as in, has any class happened before this, ma'am? No, this is the first lecture only. Okay, so it is first lecture basically includes the orientation part as well, and then we will discuss, the first chapter, the basic info. Fine, ma'am. Yeah. Thank you. So, okay, tell me, have you read the syllabus, guys? Ma'am, I'm aware that history is broadly divided into the ancient history, then we have medieval, modern, and then post independence and pre-independence as well. Okay, that's what I was going to ask. How many kind of history are you going to learn in the subject? So basically history वो subject है जो आपका प्री में प्लस मेंस दोनों के लिए क्या है, इम्पोर्टेंट है, ठीक है, आपके मेंस एंड प्री के लिए भी. एंड प्री में यू नो दैट आपका जो जीएस का एग्जाम होता है उसके लिए इम्पोर्टेंट है. एंड फॉर मेंस पार्ट आपके और भी जीएस के सब्जेक्टिव एग्जाम्स होते हैं. फॉर दैट जीएस
पेपर जो 1 होता है उसमें आपका जो हिस्ट्री होती है वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है. ओके, तो बेसिकली अगर हम प्री की बात करें, ठीक है, प्रीलिम्स की बात करें, यहाँ पे भी आपको अराउंड 15 to 20% वेटेज आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा. ओके, और यहाँ पे भी आपको अराउंड 20% जो वेटेज है हिस्ट्री का वो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है. ओके, तो ऑटोमेटिकली किसी का अगर माइक ऑन है प्लीज वो बंद कर दीजिए ताकि किसी को कोई डिस्टर्बेंस ना हो. ओके, so basically इससे हमें पता चलता है कि चाहे वो prelims हो या mains हो, our history subject is very important. So whenever we are going to begin our preparation for the UPSC, the foremost subjects we are going to study, usually people starts with the polity part and second is history part. These are two major parts हैं जो आपको करने होते हैं. ठीक है, सबसे पहले तो हिस्ट्री ही होती है कि ये तो स्टैटिक है, ये चेंज नहीं होने वाला है, तो इसको सबसे पहले शुरू किया जाता है ताकि आप मल्टीपल रिविजन्स कर सकें. ओके, एंड फैक्ट्स एंड जो फिगर्स हैं एंड अदर एनालिटिकल जो पार्ट हैं उनको अच्छे से समझ सके, राइट, बिकॉज हिस्ट्री इज अ सब्जेक्ट विच डिमांड्स रिवीजन अगेन एंड अगेन. ओके, सो ये दो सब्जेक्ट्स होते हैं जो हम सबसे पहले शुरू करते हैं, पॉलिटी एंड हिस्ट्री. ये वास्ट भी हैं एंड आपके लेंथी भी हैं और इम्पॉर्टेंट भी हैं दोनों, राइट. आपका हिस्ट्री होता है इम्पॉर्टेंट फॉर GS1 इन द मीन्स एंड पॉलिटी इज इम्पॉर्टेंट फॉर योर GS2 इन मीन्स. ओके, एंड ये दोनों सब्जेक्ट्स प्रीलिम्स और मेंस में इंपॉर्टेंट होते हैं, प्लस आपके इंटरव्यू पार्ट में भी इंपॉर्टेंट होते हैं, राइट. बिसाइड्स दिस ये प्री और मेंस के लिए आप सबको पढ़ना पड़ता है. ओके, बट इसके अलावा आपको पता भी होगा कि आप सबको एक ऑप्शनल सब्जेक्ट भी चूज करना होता है. ठीक है, दैट इज योर चॉइस. एक लिस्ट है यूपीएससी नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग फ्रॉम विच यू कैन चूज योर ऑप्शनल सब्जेक्ट, जिसके 2 एग्जाम्स होते हैं इन मीन्स, उसमें भी हिस्ट्री का सब्जेक्ट होता है, राइट. बट फॉर द ऑप्शनल सब्जेक्ट यू नो दैट कि हमें मास्टर लेवल का हिस्ट्री करना पड़ता है, हमें काफी डीप में हिस्ट्री को करना पड़ता है. तो हिस्ट्री इज ऑल्सो वेरी गुड ऑप्शन for the optional subject. It is also very scoring as well, right. No doubt कि हिस्ट्री बहुत वास्ट है पर ये स्कोरिंग भी है आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट के लिए. ठीक है, तो जो भी जिनका भी अगर जो ऑप्शनल पेपर है वो हिस्ट्री है तो उनके लिए फायदा हो जाता है कि ये दोनों ओवरलैप हो जाते हैं. ठीक है, जीएस एंड आपका ऑप्शनल पार्ट, राइट. ओके, लेट्स प्रोसीड फर्दर. तो हमने ये तो देख लिया कि प्रीलिम्स एंड मेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है. कैसे इंपॉर्टेंट है? We talk about so if we talk about the number of questions came every year in the prelims examination, so 2020, अगर हम बात करें 2020 के बारे में तो उसमें ऑलमोस्ट 20 क्वेश्चंस थे वो हिस्ट्री पार्ट में से आए थे. इन प्रीलिम्स के बारे में बात कर रही हूँ. 2019 में ऑलमोस्ट 15 क्वेश्चंस हिस्ट्री में से आए थे. ठीक है, 2018 में 21 क्वेश्चंस आए थे हिस्ट्री में से. 2017 की बात की जाए इसमें क्वेश्चंस कम थे, वो थे 14. एंड 2016 में क्वेश्चंस आए थे आपके ऑलमोस्ट 17 एंड 2015 में आए थे आपके 14 क्वेश्चंस. तो आप देख सकते हो कि आपका ये एक सब्जेक्ट कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्कोरिंग है, कि अगर एक एग्जाम में जहाँ पे आपको मल्टीपल सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ते हैं, ठीक है, वहां पे आपको अगर 20 क्वेश्चन सिर्फ एक सब्जेक्ट में से मिले, राइट, कैन यू इमेजिन. सोचो आपने बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया हिस्ट्री को, इस 20 में से आपको 2 या 3 क्वेश्चन नहीं भी आते हैं, पर रेस्ट 16 to 17 क्वेश्चन तो आपको आते ही होंगे. ठीक है, एंड आई वुड से कि 20 में से 15 क्वेश्चंस ऐसे होने चाहिए जो आपके बिल्कुल करेक्ट हों. ठीक है, एंड रेस्ट 3 क्वेश्चंस ऐसे 2 से 3 क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जहाँ पे आप एनालिटिकल गेस लगा सकते हैं, 50-50 का गेस लगा सकते हैं. और मे बी इट इज पॉसिबल, आजकल जैसे हम देख रहे हैं कि कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं. ठीक है, अनएक्सपेक्टेड, यूपीएससी का कोई भरोसा नहीं है कि कब कैसे कहाँ से क्वेश्चन डाल दे. 2022 का पेपर 20 का पेपर हमने देखा ही है. ओके, एंड
तो हो सकता है कि एक दो क्वेश्चन ऐसे हो जिसका हमें कोई आइडिया ना हो या कोई रिस्की हो, तो हम उसको छोड़ना ज्यादा अप्रोप्रिएट मानते हैं। तो पर बेसिकली हम देख सकते हैं कि 15 से 20% वेटेज तो है हिस्ट्री का, ठीक है, प्रीलिम्स के लिए। तो दैट इज वाई कि ये सब्जेक्ट तो हमें अच्छे से करना ही है, हम ये 15 से 20 मार्क्स खो नहीं सकते। ओके, इज दिस पार्ट क्लियर? Yes, ma'am. या Yes, अब ma'am. बात करते हैं मेंस GS1। तो मेंस GS1 में आपका हिस्ट्री का सब्जेक्ट आता है, राइट, अलॉन्ग विद द ज्योग्राफी एंड द इंडियन सोसाइटी, राइट। तो बेसिकली बात करते हैं अगर 2020 में 2019 2017, I'm so sorry, my pen is not working well today, but I will change tomorrow. So It's okay, 2020 ma'am. में बात की जाए तो हिस्ट्री के 2 क्वेश्चंस आए थे, ओके, एंड 2019 में ऑलमोस्ट 4 क्वेश्चंस आए थे, 2018 में 3 एंड 17 में ऑलमोस्ट 5 क्वेश्चंस, ठीक है। 17 में प्रीलिम्स में क्वेश्चंस कम थे बट मेंस में 5 क्वेश्चंस थे, एंड 2016 में भी ऑलमोस्ट 4 क्वेश्चंस थे। तो वी कैन एवरेजली हम कह सकते हैं कि 2 से 3 क्वेश्चंस तो मेंस में हिस्ट्री के आते ही हैं, ठीक है ना। तो 3 क्वेश्चंस आप समझते हो कितने, मतलब एक क्वेश्चन 15 मार्क्स का होता है, तो ऑलमोस्ट 30 to 45 मार्क्स का तो हिस्ट्री का पेपर आना ही आना है, ये लाजमी है। तो इससे भी पता चलता है कि हमारा इंपॉर्टेंस क्या है हमारी हिस्ट्री की, ठीक है। हमने मेंस और प्रीलिम्स दोनों को ध्यान में रखते हुए इसकी प्रिपरेशन करनी है। ओके, इज दिस पार्ट इज क्लियर कि हमने दोनों को ध्यान में रखना है, कि प्रीलिम्स को भी और मेंस को भी। हमने देखा प्रीलिम्स में ऑलमोस्ट कितने क्वेश्चंस आते हैं, इन क्वेश्चंस को ध्यान में रखते हुए हम अपना टारगेट बनाएंगे। वी विल हैव अ टारगेट फॉर हिस्ट्री क्वेश्चंस फॉर द प्रीलिम्स, एंड सिमिलरली वी विल डू आवर प्रिपरेशन अकॉर्डिंग टू द मेंस एज वेल। ऐसा नहीं होगा कि हम सिर्फ प्रीलिम्स के अकॉर्डिंग प्रिपेयर करेंगे, या फिर ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ मेंस के अकॉर्डिंग करेंगे, बट फॉर बोथ ऑफ देम। Am I clear till now? Yes, ma'am. Ma'am, Please one use the Yes, comment box. question. Ma'am, when we talk about the mains paper and the pre-paper, both of them are very different. So, ma'am, does the books also change with the mains paper, or they are the same ones only? Okay, so I'll tell you. So basically what she's asking कि the type of papers in pre and mains, they both are different, ठीक है। different जैसे कि ये क्या होता है, ये आपका ऑब्जेक्टिव पेपर होता है और ये आपका क्या होता है, सब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव मींस क्या होता है, जिसमें आपके एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस आते हैं, और सब्जेक्टिव क्या होता है, जिसमें आपको डिस्क्रिप्टिव आंसर्स लिखने होते हैं, राइट। तो ये बहुत ज्यादा फर्क है कि प्रीलिम्स में तो आपको एक स्टेटमेंट दिया है या फिर ऑप्शंस दिए गए हैं, ठीक है। ऑप्शंस वो डायरेक्ट वन वर्ड ऑप्शंस भी हो सकते हैं, और स्टेटमेंट वाइज ऑप्शंस भी हो सकते हैं, और रीअरेंजमेंट हो सकता है, ठीक है, एंड मैच द कॉलिंग इन एनी वे एमसीक्यूज आते हैं प्रीलिम्स में, ओके। एंड whenever we talk about the MCQs part, we talk about the facts, ठीक है। फैक्ट्स तो एक आधा कभी उन्होंने एक स्टेटमेंट में भी डाल दिया एंड यू डोंट नो अबाउट द फैक्ट, तो यू विल नॉट बी एबल टू आंसर दैट क्वेश्चन, ओके। बट हियर इन मीन्स वी नीड टू राइट एन आंसर इन डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, ठीक है। तो आपको जैसे 2-3 पेजेस में आपको आंसर लिखना है, आपका 15 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो यू विल हैव टू राइट 250 वर्ड्स इन 2 or 3 पेजेस, and if you have got one question of 10 marks, then you have to write in 1.5 pages, right, in that way. तो फैक्ट्स तो पूछेंगे नहीं वो आपसे कि बक्सर की लड़ाई कब हुई, कौन सा राजा था उस वक्त उस चीज का रंग क्या था या क्या नहीं था, बल्कि वो डिस्क्रिप्टिव या सब्जेक्टिव चीजें पूछते जहाँ पे आप अपनी एनालिटिकल पार्ट्स को इस्तेमाल कर सके, और उसके बीच में जो इंटरप्रिटेशन है, उस इवेंट की जो इंटरप्रिटेशन है वो कर सके, राइट। तो ये चीज होती है, जैसे कि अगर हम बक्सर के युद्ध के बारे में बात कर रहे हैं, वी टॉकिंग अबाउट द बैटल ऑफ बक्सर, देन वी विल नीड टू एनालाइज दैट बैटल,
that why it happened, what were the reasons behind that, was it actually a battle, and why it is considered as the turning point in our history, what actually happened after that battle, right? what अगर ये battle ना होती तो, राइट? तो मतलब हमको ये इंटरप्रिटेशन करनी है। बुक में आपको क्या दिया जाएगा कि ये सीरीज ऑफ इवेंट्स बता दिए जाते हैं, एनालिसिस क्या करना होता है, हमें करना होता है, ठीक है? तो वो चीजें भी हम सीखेंगे, दैट इज ताकि वो अपने मेंस में काम आए। सो अगर हम बुक्स के बारे में बात करें, ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं सबसे पहले अपनी सब्जेक्ट्स के बारे में, कौन कौन सी तरह की आपकी हिस्ट्री होती है, ठीक है? सबसे पहले आपकी होती है एंशियंट इंडियन हिस्ट्री, यही होती है, या एंशियंट वर्ल्ड हिस्ट्री होती है? टेल मी। इंडियन मैम। मैम इंडियन। या तो हमें एंशियंट इंडियन हिस्ट्री मैम इंडियन। या ठीक है, एंड आफ्टर दैट medieval Indian history, Indian, yes ma'am. right? And after that modern history, modern Indian history, उसके बाद post independence, राइट? एंड उसके बाद क्या होती है आपकी वर्ल्ड हिस्ट्री, वो हम अलग से पढ़ते हैं। बस इतना ही होता है, ये इसके अलावा भी कुछ होता है हिस्ट्री में? मैम आर्ट कल्चर। प्लीज रिपीट अगेन। आर्ट एंड कल्चर मैम, आर्ट एंड कल्चर। Yeah, correct. I thought you guys forget that we also have art and culture. तो basically art and culture हम कहाँ से कहाँ तक पढ़ते हैं, बताइए? Ma'am, ancient to modern, I guess, because ancient we have Indian Harappan civilization. Ancient से modern. तो बेसिकली हम आर्ट एंड कल्चर पढ़ते हैं एंशिएंट से लेके मॉडर्न। पोस्ट इंडिपेंडेंस भी पढ़ेंगे, बट पोस्ट इंडिपेंडेंस में कुछ कल्चर रह ही नहीं गया है, तो आर्ट एंड कल्चर कुछ बचा ही नहीं है, तो उसमें कुछ खास है नहीं, राइट? तो वो भी अगर जब हम कंप्लीट करेंगे तो वो भी हम पोस्ट इंडिपेंडेंस का भी करते हैं, ठीक है? तो आर्ट एंड कल्चर में हम ये पूरा पीरियड कवर करेंगे फ्रॉम एंशिएंट टू पोस्ट इंडिपेंडेंस, ओके? इफ वी टॉक अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ द दिस हिस्टोरिकल पार्ट, राइट? तो वी नो दैट कि सबसे इंपॉर्टेंट है हमारी क्या, आपकी मॉडर्न हिस्ट्री ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, ओके? एंड उसके बाद अगर हम बात करें आपका एंशिएंट एंड मिडीवल पार्ट, ठीक है? एंशिएंट और मिडीवल पार्ट वाज वेरी अंडररेटेड, ठीक है? कि इसको छोड़ दो या फिर थोड़ा थोड़ा कर लो ऊपर ऊपर से तो हो जाएगा, ठीक है? बट नहीं, वी कांट से दीज डेज कि हम इसको थोड़ा थोड़ा करेंगे, ऊपर ऊपर से करेंगे, ठीक है? नहीं, हम इनको अच्छे से करेंगे, बिकॉज वी नो दैट कि ये दोनों में आने वाले हैं, ठीक है? प्रीलिम्स में और मेंस में भी, प्लस आर्ट एंड कल्चर में भी, राइट? आपको आर्ट एंड कल्चर समझ में नहीं आएगा अगर आपको एंशिएंट हिस्ट्री और मिडिवल हिस्ट्री नहीं आती होगी, ठीक है? आपको क्या समझ आएगा बुद्धिज्म के कल्चर के बारे में? व्हाट विल यू लर्न अबाउट द बुद्धिज्म कल्चर और उनके आर्किटेक्चर के बारे में, जब तक आपको पता ही नहीं कि वो कब हुआ, कैसे आया, क्या नहीं, कैसे बुद्धिज्म चल रहा है, नहीं पता। वो कब हम पढ़ेंगे? एंशिएंट हिस्ट्री में पढ़ते हैं हम, ठीक है? मुगल पीरियड आया, उन्होंने कैसे आर्किटेक्चर को इंडिया में बिल्कुल ही चेंज कर दिया, वो कैसे हमें पता चलेगा? जब हम मेडिवल इंडियन हिस्ट्री भी हमने पढ़ी होगी, राइट? ब्रिटिशर्स के आने से हमारा कल्चर कैसे डिक्लाइन हो गया, वो मॉडर्न हिस्ट्री से पता चलता है, राइट? एंड आफ्टर इंडिपेंडेंस हमारा कल्चर कैसा रहा, वो हमें पता चलेगा, ठीक है? तो ये सब कुछ हमें आना बहुत जरूरी है। बट अगर फॉर द इम्पोर्टेंस अगर बात की जाए, आपका जो मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट है दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है? इसमें से आपके प्रीलिम्स एंड मेंस में क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं। प्लस फिर हम एंशिएंट एंड मेडिवल हिस्ट्री करेंगे। एंशिएंट एंड मेडिवल हिस्ट्री में भी अगर बात की जाए तो ये दूसरे नंबर पर इंपॉर्टेंट है आपका एंशिएंट हिस्ट्री। मेडिवल हिस्ट्री की इंपॉर्टेंस थोड़ी सी कम है, बट वो उसको ज्यादा समय नहीं लगता है करने में। एंड आई ऑल्सो जस्ट मेंशन कि आर्ट एंड कल्चर करने के लिए भी हमें मेडिवल हिस्ट्री करनी पड़ती है, राइट? एंड तो थर्ड पे ये इंपॉर्टेंट है, राइट? तो ये चीजें ऐसे चलती हैं। तो ये है आपकी
प्री के लिए important, right? If we talk about the post-independence part plus the world history, right? The part of post-independence and the world history is, you know, ये दोनों आपके important है basically मेंस के लिए, ठीक है। जरूरी नहीं है कि इसमें से कोई क्वेश्चन आए, कई बार होता है क्वेश्चन नहीं भी आता है या एक या आधा क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। तो ऐसे होता है कि वर्ल्ड हिस्ट्री में से एक या दो क्वेश्चन आ गए ऐसे, ओके। तो ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, पर हाँ एंशिएंट मेडिवल मॉडर्न हम अच्छे से करेंगे। एंड इफ वी टॉक अबाउट द पोस्ट इंडिपेंडेंस पार्ट, तो आपको पता होगा कि पोस्ट इंडिपेंडेंस का जो पार्ट है या फिर इंडिपेंडेंस का जो यू नो आफ्टर 1940s का जो पार्ट है, 1940s से लेकर जितना भी इंडिपेंडेंस और पोस्ट इंडिपेंडेंस का पार्ट है वो आप अपने पॉलिटी में भी पढ़ते हो और आप अपने इकोनॉमी में भी पढ़ते हो, राइट? एम आई राइट विद दिस? जो भी आपका इंडिपेंडेंस का 1940s से बाद वाला पार्ट है, मतलब 1940s के बाद क्या होता है कि कैसे आपका कॉन्स्टिट्यूशन बनना शुरू होता है, कैसे इंडिपेंडेंस हासिल किया, कैसे आपकी फिर रिपब्लिक हुए, आप कॉन्स्टिट्यूशन आया, एंड देन कैसे कैसे आपकी इकोनॉमी बनी, वो सब कुछ आप अपने पॉलिटी के अर्ली सेशंस में भी पढ़ते हैं और अपने इकोनॉमी के अर्ली सेशंस में भी पढ़ते हैं। तो पोस्ट इंडिपेंडेंस वहां पे भी कवर होता है, ओके? यस मैम। या सो इफ वी टॉक अबाउट द बुक्स, so we know that कि NCERTs play a very important role. Why? सबसे पहले तो they are very sorted, ठीक है, गवर्नमेंट के द्वारा बुक्स बनाई गई हैं वो, ठीक है। अगर कोई भी कॉन्फ्लिक्ट आता है क्वेश्चंस में या वेयर एवर, तो जो भी गवर्नमेंट बुक्स में लिखा होता है, ठीक है, उनको सही माना जाता है, ओके। दीज आर द स्टैंडर्ड बुक्स, इजी हैं, सॉर्टेड हैं, एक स्पेसिफिक सिलेबस डिफाइन करती हैं, ओके। एंड दूसरी बात कि हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, पर जरूरी नहीं है कि सबने पढ़ी हो, राइट? और बचपन में हमने कभी सोचा नहीं होता कि अच्छा इस चीज को इतने डीप से पढ़ना था, अगर हमें एग्जाम देना है हम सिर्फ उसे 6th या 7th क्लास के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं, बट एनसीईआरटीज करनी है आपको यहाँ पे, राइट? बिसाइड्स दैट एंशिएंट एंड मेडिवल हिस्ट्री के लिए आप क्या कर सकते हो, आप जैसे हम एनसीईआरटीज कवर करेंगे, बिसाइड्स दैट आपकी जो ओल्ड एनसीईआरटीज होती हैं एंशिएंट हिस्ट्री की क्लास 11th की एंड मेडिवल हिस्ट्री की क्लास 11th की, वो आप कर सकते हो, राइट? बट मेडिवल हिस्ट्री की आई वुड से कि बहुत ज्यादा वास्ट हो जाती है, ठीक है, एंड बहुत सिलेक्टिव पढ़ना होता है, हम सारी बुक्स नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। एंड मॉडर्न हिस्ट्री के लिए आपको 2 बुक्स रिकमेंड की जाती हैं, आपने सुना ही होगा, दैट इज द मोस्ट फेमस बुक दैट इज बिपिन चंद्र, ठीक है, ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया बाय बिपिन चंद्र, एंड एक स्पेक्ट्रम पब्लिकेशंस की बुक आती है, आप वो भी यूज कर सकते हो, ठीक है। ये दोनों बुक्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है। स्पेक्ट्रम में क्या होता है कि चीजें काफी सॉर्ट करके लिखी गई हैं, आपको मुश्किल नहीं होगा। बिपिन चंद्र में क्या होता है कि आप फर्स्ट रीड में आपको पता नहीं चलता है, जब आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो तब आपको पता नहीं चलता है कि क्या हो रहा है, कैसे इन चीज को नोट्स बनाने हैं, ठीक है, एंड क्योंकि वो सब कुछ पैराग्राफ में लिखा गया है एंड नोवेल टाइप लगता है, वो बुक टाइप नहीं लगता है, ओके। बट या फर्स्ट टाइम अगर आपने, जैसे अभी आप हमारे साथ कोर्स कर रहे हो, आपने एक बार अपने ऐसे ग्रुप के साथ हिस्ट्री कर ली, फिर आप बिपिन चंद्र उठा के देख रहे हो, तो आपको पता चलेगा कि अच्छा ये चीज ऐसे है, ये चीज ऐसे है, मुझे ये चीज को अलग से साइड करना है, ये चीज मुगल पीरियड है, इसके साथ ये राइज ऑफ स्टेट्स आएगा, ये इसके साथ हमें क्रिएट करना है, तो ये हमें पता रहेगा, राइट? तो फर्स्ट टाइम बिपिन चंद्र को पढ़ने में थोड़ी दिक्कत आती है एंड इट इज वेरी टाइम कंज्यूमिंग। अगर आपके पास ज्यादा टाइम है देन यू कैन गो फॉर बिपिन चंद्र, अदरवाइज यू कैन गो फॉर स्पेक्ट्रम, राइट? World history, for world history NCERT is enough, it is more than enough. Post independence will be covered in the NCERTs or in the early sessions of the polity or the economy, right? And that's it. आपको इसके अलावा और कुछ करने की जरूरत नहीं है, but you cannot skip the previous year papers at any cost. Previous year papers की importance इतनी ज्यादा है कि आप उनको किसी भी कीमत पे छोड़ नहीं सकते। स्टार्टिंग में हमें क्या लगता है कि नहीं बाद में देखेंगे, जब हमारा सिलेबस हो जाएगा ना, देन वी विल चेक द प्रीवियस ईयर पेपर। नो, दैट इज टोटली अ रॉन्ग अजम्पशन। आपको क्या करना है, सबसे पहले तो प्रीवियस ईयर पेपर ही हमको देखना होता है कि किस तरह का पेपर आया हुआ है, या फिर किस तरह के मेंस में क्वेश्चन आए हुए हैं, किस तरह के प्रीलिम्स में क्वेश्चन आए हुए हैं, ओके। सो बेसिकली दिस वाज द स्टार्टिंग ऑफ द सब्जेक्ट
की क्या है, सब्जेक्ट की डिमांड क्या है, पेपर की डिमांड क्या है और किस तरह की आपकी होती है, ठीक है। इसमें आपका हम आर्ट एंड कल्चर भी कवर करेंगे। एक बार तो जैसे हम एंशिएंट हिस्ट्री एंड मॉडर्न और मेडिवल कर रहे हैं, उसके बीच में जो मेजर आर्ट एंड कल्चर के इवेंट्स आएंगे वो हम कवर करते रहेंगे। बट अगर हम बात करें स्पेसिफिक एक अलग से सब्जेक्ट की, हम आर्ट एंड कल्चर को एक अलग से सब्जेक्ट की तरह मानते हुए अलग से इसको कवर करेंगे कंप्रीहेंसिवली, ओके। तभी हम इसको अच्छे से करेंगे, राइट? इज दिस क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, ठीक है, गुड। ये तो बात हो गई कि सिलेबस, पेपर की इंपॉर्टेंस क्या है एंड ठीक है, सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंस क्या है प्रीलिम्स एंड मेंस एक्सेट्रा में, बुक्स क्या है, कैसे नहीं है, ओके। नाउ लेट्स डिस्कस कि हम प्रोसीड कैसे करने वाले हैं सब्जेक्ट में, ओके, कि हम कैसे आगे बढ़ने वाले हैं, कैसे काम करने वाले हैं, वो सब कुछ। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट आई वांट यू फ्रॉम गाइस कि आपको, अगर आप सच में सीरियस हो, आप सच में सीरियस होके पढ़ना चाहते हो, तो यू हैव टू डू एग्जैक्टली व्हाट आई वांट और व्हाट आई एम सेइंग, ठीक है। एक्चुअली आपको वो चीज माननी पड़ेगी, ठीक है। अगर मैं आपको अपना टाइम दे रही हूँ और मैं आपको डेडिकेशन से पढ़ा रही हूँ, ठीक है, तो आपको भी उतना टाइम देना पड़ेगा, राइट? तो देखो, ऐसा नहीं करना है आपको, बैकलॉग तो बिल्कुल भी इकट्ठा नहीं करना है, ठीक है। एट एनी कॉस्ट यू आर नॉट गोइंग टू दैट बैकलॉग इन योर हैंड कि ये 2 दिन का मैं इकट्ठा पढ़ लूंगा तीसरे दिन, नहीं, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं करना है। जो भी हम एक पर्टिकुलर दिन पढ़ेंगे वो आपको साथ साथ रिवाइज करना है, राइट? तो बेसिकली आपको रीड करना है जो भी हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। प्लस आप अपने एंड पे एनसीईआरटी कवर कर रहे होंगे, राइट? आर यू डूइंग गाइस? आप एनसीईआरटी कवर कर रहे हैं अपने साइड पे या नहीं, या शुरू की हैं या क्या? यस मैम, Yes, ma'am. कर रहे हैं। ओके, हिस्ट्री शुरू की है आपने? यस मैम। ओके No, ma'am. ओके, नो इश्यूज। अगर किसी ने की हैं तो भी कोई बात नहीं, और नहीं किए तो भी कोई बात नहीं। देखो, आई विल नॉट गोना से कि मैम एनसीईआरटी के लिए और 11th की एनसीईआरटी इनफ या 12th की मॉडर्न एनसीईआरटी भी पढ़नी पड़ेगी? नहीं, फॉर मॉडर्न यू कैन गो फॉर द बिपिन चंद्र और स्पेक्ट्रम ओनली। एनसीईआरटी में सिर्फ 11th की एनसीईआरटी इज इनफ ना? यस 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 यस। Thank you. देखो, व्हाट आई वाज सेइंग कि maybe some of you are completing the NCERTs at your own end and some of you are not doing, ठीक है ना। I will not going to say कि जितना मैं करवाऊंगी वो कर लो आप, ताकि आपके मन में ऐसा नहीं आना चाहिए। देखो, मैं आपको बिल्कुल कम्प्रीहेंसिवली पढ़ाने वाली हूँ हिस्ट्री, ठीक है ना, एंड बट फिर भी आपके मन में ये नहीं आना चाहिए कि मैंने एनसीईआरटीज को कवर नहीं किया है। हर जो टीचर है या हर जो टॉपर है, हर जो इंस्टीट्यूशन है, वो ये कहता है कि एनसीईआरटीज तो जी मस्ट है, बट दैट इज फ्लॉड केस है थोड़ा सा। ऐसा नहीं होता है कि आप पहले पूरी एनसीईआरटीज कवर करेंगे उसके बाद आप है ना स्टैंडर्ड बुक्स कवर करेंगे, ऐसा कभी मत करना, वो बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा, ठीक है। जैसे अगर आप एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ रहे हैं एनसीईआरटीज में से आपने जैसे फॉर एग्जांपल बुद्धिज्म ले लीजिए, बुद्धिज्म का टॉपिक पढ़ा एनसीईआरटीज में से, एनसीईआरटीज में कवर करने के बाद आप स्टैंडर्ड बुक्स भी उठा लो साथ में, स्टैंडर्ड बुक्स में भी उसी बुद्धिज्म के टॉपिक को कवर कर लो, ओके। तो इस तरह से आपको एनसीईआरटी और स्टैंडर्ड बुक्स दोनों को यूज करना है। ऐसे मत करना आपने क्या किया पहले पूरा महीना लगा के एनसीईआरटीज कवर कर ली, राइट? ऐसे मत करना कि फिर आप नेक्स्ट मंथ क्या करोगे कि हम स्टैंडर्ड बुक फॉलो करने वाले हैं। अब स्टैंडर्ड बुक फॉलो करने पर जब टाइम आया है तो बुद्धिज्म आप शुरू करने वाले हो, तो जो भी पहले पढ़ा होगा वो तब तक आप भूल चुके होगे, ठीक है। तो पहले तो वो पहला पढ़ा हुआ ही आपको रिवाइज करने में टाइम लग जाएगा। तो जब आप साथ साथ में करते हो चीजें आसान हो जाती हैं, ओके। तो मैं यहाँ पे ये नहीं कहूंगी कि मेरा चीज कर लो, ये बहुत है, ये इतना काफी है। आई विल हेल्प यू इन डूइंग एनसीईआरटीज एज वेल, ठीक है। हम क्या करेंगे कि मैं आपको होमवर्क दिया करूंगी। देखो, मैं जैसे अपना कोर्स चलाने वाली हूँ वो चलेगा वैसे का वैसे। बिसाइड्स दिस आई विल गिव यू अ टास्क असाइनमेंट कि आज आपको इतने
इस दिन में इतने पेजेस आपको कवर करने हैं, या फिर जैसे 6th क्लास का कोई इजी चैप्टर होगा, आई वुड से कि आपको ये एक चैप्टर आज रीड कर लेना है, ठीक है? इज इट ओके विद एवरीवन? ये आप करोगे ना? यस मैम। Yes, ma'am. Yes, ma'am. जब तक कोई बोलने वाला नहीं होता ना ऊपर से, तो हमें पता है कि कोई करता भी नहीं है, ठीक है? तो ये चीज हमें करनी है, और देख लो, और एक भी तुम में से ये चीज छोड़ेगा नहीं, ठीक है? अगर सोचो शुभम ने ये चीज छोड़ दी एक दिन, तो सोचो शुभम तुम पीछे रह जाओगे और बाकी सारे आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है? तो सोचो कि सभी के सभी कर रहे हैं, तुम किसी भी हालत में वो चीज छोड़ नहीं सकते, ठीक है? तो एक तो ये असाइनमेंट रहा करेगी कि मैं आपको बताऊंगी कि हमें ये एक एक चैप्टर इतने पेजेस आज करने हैं, ओके? तो हम 6th क्लास से शुरू करेंगे, ठीक है? एनसीईआरटी को करना, और हम एक एक करके पढ़ते जाएंगे, ठीक है? यस मैम। या तो इस तरह से आपकी एनसीईआरटी साथ में कवर होती रहेंगी, ओके? मैम एनसीईआरटी पढ़ते समय हमें नोट्स भी लिखनी है? इन फर्स्ट रीड आप उन्हें नॉर्मल पढ़िए, ठीक है? आप Okay, फर्स्ट रीडिंग में उसको एक बार नॉर्मल पढ़िए, क्या चल रहा है, क्या चीजें क्या नहीं है, ठीक है? इन सेकंड रीड आप ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे एनसीईआरटी को, तब आपको पता चल जाएगा कि व्हाट इज नेसेसरी एंड व्हाट इज नॉट नेसेसरी, ठीक है? ऐसा ना हो कि आपको, क्योंकि नोट्स का मतलब क्या होता है? क्रिस्प नोट्स, मतलब ऐसी चीजें हो नोट्स आपके कि 100 पेजेस का काम वो 20 पेजेस में लिखा गया हो, जिसको रिवाइज करने में कम वक्त लगे, ठीक है? तो ऐसा ना हो कि हम अननेसेसरी पॉइंट्स अपने नोट्स में बनाएं। तो सेकंड रीड में नोट्स बनाना आई वुड सजेस्ट। ओके तो फर्स्ट रीड आप मेरे साथ करने वाले हो, जैसे जैसे मैं आपको सजेस्ट करूंगी हम वैसे वैसे पढ़ने वाले हैं। एंड उस असाइनमेंट के बाद जैसे आप सभी मुझे बता देंगे कि आपने वो पर्टिकुलर असाइनमेंट, वो पर्टिकुलर जो चैप्टर है एनसीईआरटी का वो पढ़ लिया है, आई विल गिव यू सम क्वेश्चंस, ठीक है? कि मैं आपको उसमें से क्वेश्चंस पूछूंगी, ठीक है? तो आपको इस तरह से वो एनसीईआरटी के असाइनमेंट को सॉल्व करना है। इज दिस क्लियर? यस मैम। Yes, ma'am. 12th तक की हमें एनसीईआरटी सारी कंप्लीट करनी है, उसके बाद सेकंड रीड देंगे तब नोट्स बनाने हैं। एग्जैक्टली या ओके मैम। या सो यस मैम मेरा पूछना ये था कि अगर यानी हम लोग को पहले पूरा रीड आउट करके निकालना है क्या, जैसे हिस्ट्री जो 12th तक के पूरा पहले पढ़ना है क्या? नहीं, व्हाट आई एम सेइंग कि देखो, आपने जैसे 6th क्लास की एनसीईआरटी का आप अपने एक चैप्टर कर लिया, मतलब आपके पूरे ग्रुप ने एक चैप्टर कर लिया, और आप साथ साथ में उसका टेस्ट भी देते रहोगे, ठीक है? मैं आपको हर चैप्टर के बाद में कुछ क्वेश्चंस दूंगी या क्विज दूंगी आपका, ये जांचने के लिए कि वेदर आपने सच में वो चैप्टर ध्यान से समझा है या पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, ओके? रेस्ट बिसाइड दिस एनसीईआरटी बुक्स, हमारी स्टैंडर्ड बुक्स के अकॉर्डिंग ये जो सेशन चल रहे हैं, ये ऑनलाइन सेशंस भी तो चलेंगे ना, तो आपको और भी ज्यादा क्लियर हो पाएंगी चीजें, एंड देन यू विल बी एबल नहीं, टू। अभी आपने बोला ना मैम कि एक बार आपका पूरा रिवीजन हो जाए, उसके बाद आपको सेकंड टाइम जब रिवीजन करना है तब आपको नोट्स बनाना है। तो मैं वही कंफ्यूजन कर रहा था। ओके, आप सेकंड टाइम पे नोट्स बनाइए, आई सजेस्ट कर रही हूँ आपको, ठीक है? ताकि आप अननेसेसरी चीजों को ऐड मत करें अपने नोट्स में, ठीक है? जी मैम। या ठीक है, तो ये तो था असाइनमेंट वाला पार्ट और एनसीईआरटी वाला पार्ट, ठीक है? बिसाइड्स दिस ये लाइव सेशंस में हम अपना सिलेबस कवर करेंगे, जिसमें हम सबसे पहले मॉडर्न हिस्ट्री उठाएंगे, ओके? एज आई हैव ऑलरेडी मेंशन कि मॉडर्न हिस्ट्री सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है, बहुत सारे इवेंट्स है उसमें, बहुत सारी चीजें हैं, एंड ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम मॉडर्न हिस्ट्री कवर करने वाले हैं। इज दिस ओके विद एवरीवन? ठीक है? यस, As you say, ma'am. या एंड साथ में हमारी एनसीईआरटी चलती रहेंगी। देखो, स्टार्टिंग ऑफ द एनसीईआरटी अगर क्लास 6 से कर रहे हैं हम, तो वो एंशिएंट हिस्ट्री शुरू हो रहा है, ठीक है? तो कोई चक्कर नहीं है, ऐसा सोचना मत कि यहाँ पे एंशिएंट हिस्ट्री चल रहा है वहां पे वो चल रहा है, ऐसा कुछ नहीं करना है हमको। सिर्फ जस्ट एक लाइन में और क्लासेस वाइज 6, 7, 8 आपको एनसीईआरटी कवर करनी है। सेशंस में हम अपना मॉडर्न हिस्ट्री का सिलेबस कवर करेंगे, ठीक है? क्योंकि इंपॉर्टेंस वाइज ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी मॉडर्न हिस्ट्री। प्लस हर सेशन के बाद आपको जो नोट्स होंगे मैं वो आपको प्रोवाइड कर दूंगी, ठीक है? प्लस उन रोज नोट्स को मैं आपको रिवाइज करने के लिए टाइम दूंगी, ठीक है? एंड आफ्टर दैट जैसे 1 डे, ठीक है, एक दिन के बाद उसी सेशन के बेस पे या फिर जो भी आपने वो नोट्स रिवाइज किए हैं उनके बेसिस पे, उस
टॉपिक के बेस पे आपका एक क्विज हुआ करेगा, ठीक है, वो आपका टेस्ट लिया जाएगा पर्टिकुलर, ठीक है, तो ताकि आप टाइम पे रिवीजन कर रहे हैं, आप टेस्ट दे रहे हैं, वो मुझे पता चलता रहे। सही है, ठीक है। हाँ, तो ये है था सेशन के बाद नोट्स को करना है हमें रिवाइज, एंड आफ्टर रिवीजन ऑफ द नोट्स हमें देना है क्विज, ठीक है। एवरी टाइम यही प्रोसीजर हम फॉलो करेंगे, ओके। प्लस ये तो क्विज था कि एमसीक्यूज बेस्ड क्विज, हर सेशन में हम एक आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी करेंगे, ठीक है। हम क्या करेंगे, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी करेंगे। जितने भी क्वेश्चंस उस चैप्टर में से, उस टॉपिक में से बनते हैं, जैसे एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन, वो मैं आपको क्वेश्चन दिया करूंगी फॉर द आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, ठीक है। एंड आई विल मेंशन आल्सो कि कितने मार्क्स का है और कितने वर्ड्स में आपको लिखना है, ठीक है। और आपको जितना चीज वो टॉपिक समझ आया, कैसे लिखना है, आपका आंसर स्टाइल क्या है, वो आप आंसर लिखोगे और फिर उसका फोटो क्लिक करके उसका पीडीएफ बना के मुझे सेंड करोगे, एंड आफ्टर दैट आई विल एवेल्युएट योर आंसर्स ऑन डेली बेसिस। आपके जो सेशन के बेसिस पे होगा ना ये सब कुछ, यस मैम। हम आपका एमसीक्यूज और ये मेंस वाली दोनों चीजों को कवर करेंगे, ठीक है। यस मैम। तो बेसिकली हमारा प्लान क्या है, एनसीईआरटीज हम थ्रू असाइनमेंट्स करते रहेंगे इन ग्रुप, ठीक है। ठीक है, प्लस हम शुरू करने वाले हैं विद मॉडर्न हिस्ट्री, ठीक है। मॉडर्न हिस्ट्री शुरू करेंगे, उसका क्या होगा, आपको नोट्स दिए जाएंगे, रिवाइज द नोट्स, उसके बाद आपका क्या होगा, क्विज, ठीक है। उसके बाद आपका क्या होगा, क्विज, प्लस आपकी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस होगी, ठीक है, जिसमें आपको 1 से 2 क्वेश्चन दिए जाएंगे। स्टार्टिंग में आपको मैं 1 ही क्वेश्चन दूंगी, ठीक है, आपको और भी काम होते होंगे, और भी सब्जेक्ट है, ठीक है। 1 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन आपको आंसर राइटिंग के लिए दिए जाएंगे, आप लिखोगे एंड देन मेक अ पीडीएफ एंड सेंड टू मी, आप मुझे सेंड करने वाले हो। तो ये चीजें हमें फॉलो करनी है अपने सब्जेक्ट के साथ प्रोसीड करने के लिए। और इसमें से जो भी यहाँ पे प्रेजेंट है, देखो अगर तुम लोग यहाँ पे प्रेजेंट हो, दैट मीन्स यू रियली वांटेड टू लर्न, है ना, आप सच में पढ़ना चाहते हो, डेडिकेटेड हो, और कुछ भी छूटना नहीं चाहिए, दैट्स वाई आप यहाँ पे बैठे हो और मेरी बात सुन रहे हो। तो यहाँ पे जो कुछ भी लिखा है, अगर आप शुरू करोगे तो इसको साथ के साथ चलाना, और कुछ भी चीज को बीच में छोड़ना नहीं है, ठीक है। और अगर 20 में से 10 में से एक भी पर्सन, जैसे कोई इमरजेंसी आ जाती है, समटाइम्स आप अब नहीं कर पाते हो, ठीक है, कई बार टाइम टेबल में प्रॉब्लम आ जाता है, ओके, तो आपको वो मेंशन करना है कि बिकॉज ऑफ सम इमरजेंसीज आई एम नॉट एबल टू डू दैट दिस टॉपिक, ठीक है, तो वो आपको रीजन बताना है, ठीक है। बिकॉज टुडे इज द फर्स्ट डे, आई डोंट नो योर पर्टिकुलर नेम्स, आप कौन हो, कहाँ से हो, आई डोंट नो अबाउट दैट, but yeah, with the time I will come to know, and I will evaluate every person, उसकी जो परफॉर्मेंस है डे 1 से लेके जैसे भी रहेगा, I will evaluate everything, ठीक है। तो Yes. this is the basic journey that we are going to do, और हम ये चीज साथ में करने वाले हैं, and I will make you ensure कि आपको बहुत मजा आने वाला है और आपको हिस्ट्री बोरिंग नहीं लगेगा, बी इट योर एंशिएंट से लेके मेडिवल से लेके मॉडर्न, प्लस आपका आर्ट एंड कल्चर हो या जो भी हो, ठीक है। हम बोरिंग नहीं बनाएंगे, मजे करेंगे, और हिस्ट्री को इससे करेंगे कि आपके फैक्ट्स क्या, आपका एनालिटिकल पार्ट क्या, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन, सब कुछ टिप्स पर होना चाहिए, ओके। एक और बात, besides these the regular sessions, I don't know, I think the next 3rd or 4th sessions maybe are going to conduct in the next weekend, I guess, but before that I would like to have a session जिसमें हम बीच में हम एक सेशन लेते रहेंगे, जहां पर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे इन क्लास, ठीक है, जहां पे हम क्या करेंगे, जो प्रीवियस क्या होता है, क्यों
प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस होंगे हम उनको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। जैसे 2020 का सॉल्व करेंगे पहला पेपर, फिर 2019 का, तो ऐसे ईयर वाइज हम 10 से 12 सालों के जो पेपर हैं वो सॉल्व करेंगे एक एक सेशन में, ठीक है। तो वो सेशन उस दिन छोटा हुआ करेगा, फिर हमें सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे, जितने भी 10 से 15 से 20 क्वेश्चन होंगे, चाहे हमने वो टॉपिक किया है या नहीं किया है, डजंट मैटर, बट वी विल गोइंग टू सॉल्व एवरी पेपर ऑफ अराउंड 10 to 12 ईयर्स, ठीक है। पहले प्रीलिम्स के करेंगे, उसके बाद हम मेंस के प्रीवियस या पेपर्स को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो मतलब अपने रेगुलर सेशंस के बीच बीच में एक ऐसा छोटा सा सेशन बीच में लगाते रहेंगे, ठीक है। यस मैम। यस क्लियर है ना? ताकि आई जस्ट वांट टू मेक श्योर कि आप किसी भी तरह से आपकी कोई भी चीज छूटे ना, क्योंकि कई बार हम अपने खुद का टाइम टेबल बनाते हुए चीज छोड़ देते हैं, तो यहाँ पे वो चीज नहीं होने वाली। आई विल टेक केयर ऑफ ऑल दिस थिंग्स, ठीक है। हम ये चीज ध्यान में रखेंगे सब कुछ, ठीक है। ओके, सो बिसाइड्स दैट आई हैव जस्ट क्रिएटेड अ टेलीग्राम चैनल, ठीक है, जहाँ पे फॉर आप सब लोगों के लिए, जहाँ पे हम अपडेट्स डाला करेंगे अपने कोर्स के रिलेटेड, सब्जेक्ट के रिलेटेड, और जो भी असाइनमेंट्स, आपका क्विज मैंने लिया करूंगी। जो क्विज होगा बेसिकली वो हम लाइव ही लिया करेंगे, ठीक है, टेलीग्राम पे, ठीक है। वो लाइव ऑप्शंस वहाँ पे बेटर होते हैं, तो वहाँ पे ले लिया करेंगे। एंड जो भी आंसर राइटिंग आप मुझे करके दोगे, पीडीएफ बना के भेजा करोगे, वो भी आप मुझे वहाँ पे भेज दिया करना, एंड आई विल इवेलुएट, एंड जो भी आपका मैं आपको फिर बताऊंगी, ठीक है। हो सकता है कि हम आपके लिखे हुए आंसर्स को क्लास में भी डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है, आपको बताने के लिए आपकी शॉर्टकमिंग्स कहाँ पर है, ओके। और बाकियों को भी पता चलेगा, सबके किए जाएंगे, ठीक है। सो बेसिकली द चैनल इज एक सेकेंड, लेट मी चेक, आई हैव जस्ट क्रिएटेड बिफोर द क्लास so that आपको थोड़ा easy हो जाए। It's if you will search on Telegram, ठीक है। तो ये इसका टेलीग्राम का इनवाइट लिंक है, @शिवानी सिंह 2505, ये आपका पब्लिक चैनल है जिसको आप सभी ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे हम हर एक चीज एंड के बारे में, कोई भी टॉपिक हो उसके बारे में डिस्कशन कर सकते हैं, ठीक है। हेल्दी डिस्कशंस की जाएंगी, कोई फालतू की बात चिट चैट यहाँ पे नहीं होगी, सिर्फ हम अपने कोर्स और सब्जेक्ट के रिलेटेड बात करेंगे, ओके। तो इसको, इस चीज का जिसको स्क्रीनशॉट लेना है वो ले लीजिए, और अगर किसी को चैट में लिखना है वो भी आप लिख सकते हैं। समझ आ गया आपको सभी को? यस मैम। यस मैम। ओके ओके गुड, ओके। सो ये है आपका टेलीग्राम, या आप ज्वाइन कर लेना, ठीक है। सो ये हमने सारी बातें कर ली अपने सब्जेक्ट पेपर के रिलेटेड, हम कैसे काम करने वाले हैं कैसे नहीं। सो शुरू करें अपनी मॉडर्न हिस्ट्री आज से ही, बताओ। यस मैम। यस चलो यस मैम। हम किसी को पानी पुनी पीना है, एक 5 मिनट का 2 मिनट का ब्रेक लेना, यू गाइस कैन हैव, ठीक है। जिसको जो ब्रेक लेना है वो ले सकता है 5 मिनट के लिए, फिर हम मॉडर्न हिस्ट्री फर्स्ट चैप्टर शुरू करने वाले हैं, ओके। एंड यस वन मोर थिंग, अगर आपके पास बिपिन चंद्र स्पेक्ट्रम में से कोई एक बुक है तो अच्छी बात है, जिसके पास नहीं है वो परचेज कर सकता है इफ यू वांट। अगर आपके पास वो भी परचेज नहीं कर सकते हो बिकॉज ऑफ सम कोविड इश्यूज एंड अदर, आई विल शेयर द बुक्स एज वेल इन द चैनल, ठीक है। तो आई हैव पीडीएफ है मेरे पास बुक्स की, ठीक है। मैं बीट बिपिन चंद्र स्पेक्ट्रम और वट एवर अदर बुक्स आर रिक्वायर्ड, मैं वो बुक्स भी आपको चैनल में क्या कर दूंगी, शेयर कर दूंगी। समटाइम्स हम क्या करते हैं, हमने जैसे हमने एक भी बुक ले ली बिपिन चंद्र, एंड सेकंड आप रेफरेंस के लिए स्पेक्ट्रम को साथ में रख सकते हो, ठीक है। तो मैं वो दोनों बुक्स जो भी होंगी वो भी मैं आपको शेयर कर दूंगी आपके साथ, तो वो आपके काम आ जाएंगी दोनों, ठीक है। हेलो ओके मैम। Yes. मैम,
मैम Yes, please speak. I'm listening. मैम अभी तो फिलहाल सेशन में नहीं अटेंड कर पाऊंगा मैम, तो इसकी रिकॉर्डिंग मिल सकेगी क्या? Yes, yes, I guess recording sessions will be available. ओके मैम, थैंक यू सो Yeah, मच। yeah. ठीक है। Ma'am, I have for ancient history, I have R.S. Sharma. Okay. कौन सी वाली We can बुक है वो? नॉवल टाइप बुक है या फिर एनसीईआरटी की ओल्ड एडिशन है आपके पास? novel type, ma'am. नहीं वो नहीं पढ़नी है हमको। वो जो जिनके दो स्टूडेंट्स हु ऑप्ट हिस्ट्री ऑप्शनल ना, दैट बुक इज गुड फॉर देम, नॉट फॉर अस, नॉट फॉर जीएस स्टूडेंट्स। वी डोंट नीड टू रीड दैट बल्कि बुक। ठीक है, हमें वो करने की जरूरत नहीं है। वी विल डू सिलेक्टिवली एंड हमारे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। Yes. Someone is asking about the link. Can't you just search on the Telegram and I guess it will appear. जितना मुझे नॉलेज है कि अगर हम सर्च करें तो वो आ जाता है। Yes, ma'am. Share the Just join. link in the chat box. I'll share it. हाँ, तो कोई भी है एक पर्सन, वो चैट बॉक्स में कर दो तो बाकियों के लिए हेल्प हो जाएगा। तो उस चैनल में आपका जो भी पोस्ट डलेगा तो वहाँ पे आप कमेंट्स का ऑप्शन होता है, वहाँ पे आप कमेंट करके हम डिस्कशन कर सकते हैं। ठीक है, वो आप चेक कर सकते हो। I need to change the nib of this pen. I will change it tomorrow. It has been exhausted, I guess. ठीक है, तो shall we start? मैम बिपिन चंद्र अगर नई लेनी है तो उसके लिए कुछ एडिशन वगैरह का भी है, कौन सा लेना है कौन सी नहीं? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, यू कैन बाय एनी। ओके मैम, क्योंकि मैम नेट पे मैंने अभी चेक किया ना, वहाँ पे 2-3 तरह की आ रही है, शो हो रहा है वहाँ पे। नहीं कुछ खास फर्क नहीं होता है, आप कोई भी ले सकते हो। ओके मैम। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। सो बेसिकली आवर फर्स्ट चैप्टर ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री इज डिक्लाइन ऑफ द मुगल एम्पायर्स। ठीक है, अगर हम मेडिवल हिस्ट्री में मुगल एम्पायर के बारे में बात करते हैं तो मॉडर्न हिस्ट्री वो स्टेज है, वो स्टार्टिंग है जहाँ पे हम देख रहे हैं कि मुगल एम्पायर क्या हो रहा है, डिक्लाइन हो रहा है। ठीक है, तो बेसिकली एक प्लॉट सा जनरेट करते हैं। टुमारो आई विल शेयर द पीपीटी विद यू गाइस एंड देन वी विल स्टार्ट। Yes. Sorry, ma'am. Sir, I didn't hear, ma'am. Modern history, for modern history, which book, ma'am? Yeah, let me write. Is Spectrum is good, or what? आप इन दोनों में से कोई भी बुक यूज कर सकते हो, यू कैन बाय एनी बुक। ठीक है मैम, एक्चुअली आई हैव स्पेक्ट्रम। नो इश्यूज book. हाँ, दैट्स गुड, नो इश्यूज। ठीक है, रेस्ट आई विल शेयर द पीडीएफ्स ऑफ बोथ दीज फाइल्स। ठीक है, I will share the PDFs of both this file. If you have
any one of them, then you can refer the other book by using the PDF. ठीक है, तो आप ऐसे कर सकते हो. Okay, then first chapter is about the decline of the Mughal Empire. We know that it is Mughal Empire. ठीक है, हम कभी ये नहीं बोलते कि it was a kingdom. ठीक है, हमने कभी ये नहीं बोला. We always said that is a Mughal Empire, right? Why we used to use the word the empire? हम empire word क्यों use करते थे? इसका basic vast area. हाँ, वास्ट एरिया था. ठीक है, ओके ओके. और अगर हम बात करें एट द प्रेजेंट टाइम्स, आज के टाइम में हमें सबको एकजुट किसने बना के रखा हुआ है? ठीक है, हमें यूनाइट किसने करके रखा हुआ है? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने. ठीक है, उसने हमें क्या करके रखा हुआ है? यूनाइट करके रखा हुआ है. हमें क्या आइडेंटिटी दी हुई है? हमें इंडियन की आइडेंटिटी दी हुई है. हमें उसने क्या करके रखा हुआ है? हमें यूनाइट करके रखा हुआ है. बिफोर द कॉन्स्टिट्यूशन हु वाज द वन जिसके हम अंडर यूनाइट थे? ब्रिटिशर्स ने भी हमको एक ऐसी ऑल इंडिया ऐसा एक अम्ब्रेला दिया था जिसके अंडर हम जाने जाते थे. ठीक है, वो था ब्रिटिशर्स से पहले क्या था? ऐसी कौन सी पावर थी जिसने पूरे इंडिया को एक अम्ब्रेला के अंदर इकट्ठा किया हुआ था? दैट वाज द मुगल्स एक्चुअली. ठीक है, एक मुगल्स की आइडेंटिटी थी उस वक्त. ठीक है, वी नो दैट हर एक पीपल को पता था कि या समवन इज देयर इन द सेंटर एंड दैट इज मुगल. एक मुगल आइडेंटिटी हमको दिखाई देती थी. ठीक है, तो वो आइडेंटिटी सालों से चली आ रही थी. जैसे हमें पता है फ्रॉम बाबर के टाइम से लेकर औरंगजेब के टाइम से लेके बहादुर शाह के टाइम तक. ठीक है, वो हमने आइडेंटिटी चली आ रही थी. दो जो लेटर ईयर्स हैं वहां पे हमें मुगल्स के एम्पायर में क्या है? डिक्लाइन देखने को मिलता है. ठीक है, पर आम जनता को उसके बारे में पता नहीं चलता है क्योंकि हमारे आंखों में और हमारे ना माइंड में एक ऑलरेडी आइडेंटिटी बनी होती है क्या? मुगल्स की. ठीक है, शुरू से एक मुगल सल्तनत चलती आ रही है जिसमें हमने अच्छे अच्छे राजाओं को देखा है. ठीक है, हमने काफी अकबर द ग्रेट को देखा है, राइट? ऐसे अच्छे महान राजाओं को देखा है. तो हमारे मन में एक दिमाग में एक आइडेंटिटी बैठी होती है. ठीक है, तो इन द अर्ली फेजेस के हमें पता नहीं चलता है डिक्लाइन के बारे में. बट बाद में लेटर ईयर्स में क्या होता है कि बहुत बुरी तरह से डिक्लाइन होता है मुगल एम्पायर का. नॉट ओनली मुगल एम्पायर बट also the other states present in India that time. Other states मुगल एम्पायर के अलावा other states कौन सी थी इंडिया में? जैसे कि आपके राजपूत स्टेट्स हो गई, या फिर सिख्स, या फिर जाट्स और द मराठास एक्सेट्रा, और द बुंदेलखंड के लोग. ठीक है, मतलब ऐसे अलग अलग स्टेट्स थी. ठीक है, तो उनमें भी हमें डिक्लाइन देखने को मिलता है. ठीक है, तो ये वर्ड डिक्लाइन, ये फर्स्ट वर्ड ही हमें ये शो करता है कि यस दिस वाज द लास्ट टाइम कि जो इंडिया था किसी अपने के अंडर था. आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ द मुगल्स हम किसके हाथ में चले गए? ब्रिटिशर्स के हाथ में चले गए. जैसे ही मुगल्स का डिक्लाइन होना शुरू होता है को इसके अलावा कोई भी कोई ऐसी पावर बची ही नहीं थी जो मुगल्स की जगह ले सके, उनको रिप्लेस कर सके और हमारे इंडिया को वैसे के वैसा यूनाइट करके रख सके. जिसका फायदा कौन उठाता है? ब्रिटिशर्स उठाते हैं. एंड देन यू नो द स्टोरी व्हाट हैपेंड, राइट? और हमें फिर क्या हुआ? बहुत साल लग गए आजादी पाने के लिए. दोज वर द नेटिव्स? नो, दोज वर नॉट नेटिव्स. वो बाहर से आए थे, वो तो सिर्फ ट्रेड करने के लिए आए थे, राइट? बट व्हाट हैपेंड कि वो यहाँ पे रूलर्स बन गए, उन्होंने हमें एक्सप्लॉइट किया एंड हमें अपनी क्या कर लिया? कॉलोनी बना लिया गया, राइट? बट क्या मुगल्स नेटिव्स थे या फिर फॉरेनर्स थे? टेल मी. फॉरेनर्स मैम. Foreigners, ma'am. Foreigners, ma'am. No. Mughals were not foreigners, right? मुगल्स को फॉरेनर्स नहीं कहा जाता है. Why? They never intend to come in इंडिया की हम यहाँ पर ऐसे रहेंगे और फिर से चले जाएंगे. नहीं, मोस्ट ऑफ द मुगल्स वर बोर्न इन इंडिया और वो इंडिया को अपनी जैसे हम अपने इंडिया को अपना देश मानते हैं ना, अपना मानते हैं, तो वैसे ही मुगल्स ने भी अपने भारत को अपना मानते थे.
ठीक है, जैसे हमारे मैम लिए जितना वो ऐसा नहीं था लेटर स्टेजेस में, बिकॉज जब सबसे पहले बाबर आया था, ही केम फ्रॉम अफगानिस्तान साइड मैम। दैट इज ट्रू। देखो वेन एवर की जब भी कोई स्टार्टिंग किसी चीज की होती है ना, जो बिगिनर होता है वो कहीं ना कहीं से तो आता है, वो इस पर्टिकुलर जगह का होता नहीं है, ठीक है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द एग्जैक्ट बिगिनिंग, और आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द एग्जैक्ट, आई सेड द मोस्ट ऑफ द, ठीक है, आई यूज द वर्ड मोस्ट, आई डिडंट यूज द word all of the Mughals were born in India like that, ठीक है। ज्यादातर जो मुगल्स थे वो यहीं पे पैदा हुए थे आफ्टर द बाबर, द होल स्टोरी यू नो दैट। बाबर तो भारत में सिर्फ 4 साल ही रहा है, ठीक है। ऑलवेज जो द वन जो फाउंडर होता है उसके जो ईयर्स होते हैं वो बेसिकली हम देखेंगे, वी विल चेक अ लॉट ऑफ इंस्टेंसेस जहाँ पे हम देखते हैं जो फाउंडर होता है उसके जो रूलिंग पीरियड होता है वो बहुत कम होता है। उसके बाद जो आगे रूलर्स आते हैं वो कंपेटिटिव बहुत ज्यादा लंबे समय तक रहते हैं, ठीक है। एंड सबसे पहले ऐसा राजा कौन सा आया था, वो अकबर आया था, ठीक है, जिसने बहुत कंसोलिडेट किया इंडिया को, ठीक है, एंड टेरिटरी को एक्वायर किया, एक नई पहचान दी, अच्छी पॉलिसीज अपनाई, एटसेट्रा एटसेट्रा, ठीक है। तो फ्रॉम दैट पीरियड वी कम टू नो दैट दे वर नॉट फॉरेनर्स, उनको हम कभी फॉरेनर्स मानते नहीं थे, ठीक है, ऐसा नहीं था, ठीक है। या बट इनके आने से एक नया चेंज हमारे भारत में देखा गया, एक नया रिलीजन भारत में देखा गया, न्यू काइंड ऑफ पीपल, न्यू कल्चर, पूरा कल्चर में चेंज देखा गया, लॉट ऑफ थिंग्स हैपन दैट वी विल स्टडी इन द मेडिवल इंडिया, राइट। फॉर द टाइम बीइंग हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द डिक्लाइन, ठीक है। इफ वी टॉकिंग अबाउट द डिक्लाइन, हु वाज द लास्ट मेजर एंड पावरफुल रूलर, यू आर गोइंग टू टेल मी, जितना आपको पता है। आई विल मैम बहादुर शाह जफर 2, औरंगजेब आई गेस लास्ट रूलर। I am asking who was the last powerful ruler of the Mughals? Aurangzeb. Yeah. Aurangzeb. Yes. So basically it was he was Aurangzeb, जिसको माना जाता है कि वो मुगल एम्पायर का लास्ट पावरफुल रूलर था। दो उसके ही टाइम पीरियड के दौरान ही मुगल डिक्लाइन शुरू हो गया था, बट जैसे ही उसकी मौत होती है, ठीक है, आफ्टर द डेथ ऑफ मुगल एम्पायर, आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब, जो मुगल एम्पायर है वो बिल्कुल ही डिक्लाइन स्टेज में चली जाती है, कि मतलब आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब उसका रिवाइवल के कोई चांसेस बचते ही नहीं है, ठीक है। एंड एट द एंड वो जाके क्या एक दिन क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। So basically if someone will ask you who was the last powerful ruler, it was औरंगजेब, ठीक है। तो अगर हम बात करें औरंगजेब के तक के टाइम की, तो बाबर से औरंगजेब के समय की बात की जाए तो जो पूरी एम्पायर थी, जो पूरी मुगल एम्पायर की कही जाती है, वो काफी कंसोलिडेटेड थी, और हम देखते हैं काफी लार्ज एम्पायर थी। हमने देखा कि कैसे कैसे अलग अलग राजा आते हैं एंड न्यू टेरिटरीज एक्वायर करते हैं। स्पेशली वी नो दैट द अकबर ने बहुत सारी टेरिटरीज एक्वायर की थी और अपने इंडियन जो एम्पायर थी उसको एक नया शेप दिया था, राइट। तो मतलब इस टाइम के दौरान द एम्पायर वाज वेरी लार्ज, कंसोलिडेटेड एज वेल एज स्टेबल, ओके, स्टेबल भी था, ठीक है। तो आफ्टर दैट इन्होंने जो इस टाइम पीरियड था यहाँ पे काफी स्ट्रॉन्ग डिफेंस भी हमने अपनाया था अगेंस्ट द फॉरेन इन्वेजन, ठीक है। हमने कोई फॉरेन इन्वेजन नहीं होने दी, हमने काफी कंट्रोल रखा, ठीक है। काफी डिफेंस सिस्टम था, स्ट्रॉन्ग था इस टाइम के है ना दौरान। अलॉन्ग विद दैट हमने जो आसपास मुगल्स के अलावा जो और भी राजा थे या और भी रीजन्स थे, ठीक है, उनके साथ हार्मनी बना के रखी। देयर वाज प्रोस्पेरिटी इन द एम्पायर, यूनिफॉर्म एडमिनिस्ट्रेशन देखने को मिलता था पूरे मुगल एम्पायर में, ठीक है। मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट देखने को मिलते हैं आपको, ठीक है। एंड कल्चर भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग हुआ है। यू नो दैट कि हुमायूं के समय के बाद का अगर देखा जाए, बीट द टाइम ऑफ अकबर, द टाइम ऑफ शाहजहां, और ठीक है, और द अर्ली पीरियड ऑफ औरंगजेब एटसेट्रा, कि आर्ट एंड कल्चर कितना हमारा क्या हुआ, डेवलप हुआ है,
ठीक है। टेरिटरीज पर हमने बहुत ज्यादा कंट्रोल किया है, टेरिटरीज बहुत एक्वायर की हैं, तो टेरिटोरियल जो क्लाइमेक्स था वो अपने रीच पे था, ठीक है। एंड आफ्टर दैट कि जब औरंगजेब का समय आता है तब असली शुरुआत होती है किसकी, डिक्लाइन की, मुगल एम्पायर के डिक्लाइन की। तो बेसिकली कहते हैं मुगल जो है औरंगजेब के टाइम में वो क्यों डिक्लाइन होना शुरू होता है, उसके बहुत ज्यादा रीजंस थे, ठीक है। तो वो हम देखेंगे कि क्या रीजंस थे क्या नहीं थे, कैसे हुआ, ठीक है, उसका अलग से करेंगे। पहले हम बात करते हैं कि कहानी क्या है। अभी हम बात करें औरंगजेब की, ठीक है। मैम बाबर से स्टार्ट हुआ था ना मैम, तो या अभी हम मॉडर्न हिस्ट्री कर रहे हैं ना, तो मॉडर्न हिस्ट्री में हम मुगल्स कैसे डिक्लाइन होते हैं, ठीक है, कैसा डिक्लाइन स्टेज आता है, ये कैसे खत्म होते हैं, कैसे चांस मिलता है ब्रिटिशर्स को इंडिया में आने का, कंट्रोल करने का अपनी पार को, वो चीजें देखी जाएंगी, ठीक है। ओके मैम। इफ यू टॉकिंग अबाउट द बाबर स्टोरी वो हम मेडिवल में करेंगे, ठीक है। चलो हम औरंगजेब के बारे में बात कर रहे हैं। तो हमने बात किया था कि जो औरंगजेब है उसकी 1707 में क्या हो जाती है, डेथ। देखो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम थी ना मुगल एम्पायर में, वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि जब भी किसी एम्पायर की डेथ होती है ना, द नेक्स्ट प्रॉब्लम इज कि उसका नेक्स्ट जो थ्रोन है वो कौन हासिल करेगा। तो उनमें क्या होता था, वॉर ऑफ सक्सेशन, ऑलवेज जो उनके बेटे होते थे उनमें वो वॉर ऑफ सक्सेशन क्या हो जाता था, स्टार्ट हो जाता था। तो इसी तरह से औरंगजेब की डेथ के बाद भी वॉर ऑफ सक्सेशन शुरू हो जाता है उसके जो भी 3 बेटे थे उनके बीच में, ठीक है। तो बेसिकली देयर वाज 3 सन्स ऑफ औरंगजेब, दैट वाज मुआज्जम, द आजम एंड कामबख्श, ठीक है। कामबख्श उनमें से सबसे छोटा होता है। जो मुआजम होता है वो गवर्नर का काबुल का गवर्नर होता है, सॉरी, एंड आजम गुजरात का होता है, एंड कामबख्श डेक्कन एरिया में गवर्नर होता है, राइट। तो अब क्या होता है कि अब उनके ना फादर की डेथ हो जाती है एंड अब वो वॉर ऑफ सक्सेशन शुरू हो जाता है। एंड वो तीनों क्या करते हैं, अपने अपने एरिया में प्रोक्लेम्ड कर देते हैं कि हाँ ही इज द एम्परर, ही इज द एम्परर, ठीक है। वो खुद अपने आप से सेल्फ प्रोक्लेमेशन कर देते हैं दैट दे आर द एम्परर, ठीक है। बट आफ्टर दैट जो मुआजम होता है, जो बाकी दोनों ब्रदर्स को होता है, वो क्या करता है, हरा देता है, ठीक है। आजम को वो 1707 में हरा देता है, उसके बाद 1708 में वो कामबख्श को हरा देता है, उसके बाद वो क्या है, अब वो अकेला बचता है और फिर वो मुगल थ्रोन पे बैठता है और वो क्या हो जाता है, नेक्स्ट एम्परर बन जाता है। एंड जैसे ही वो नेक्स्ट एम्परर बनता है वो कौन सा टाइटल लेता है, बहादुर शाह, बहादुर शाह फर्स्ट, ठीक है। तो ही इज द वन जो औरंगजेब के बाद थ्रोन पे बैठते हैं, बहादुर शाह 1। तो ये बेसिकली ऑलरेडी ही 65 इयर्स ओल्ड के हो चुके होते हैं जब ये अपना ये लेते हैं, थ्रोन लेते हैं, काफी उम्र के हैं ये, ठीक है। इनका टाइम पीरियड बेसिकली हमारा रहा था ज्यादा नहीं रहा, 1707 से 12 तक, इतना रहा टाइम पीरियड इनका। बहादुर शाह फर्स्ट कहा जाता है इनको, ठीक है। तो बेसिकली अगर हम इनके टाइम पीरियड के बारे में बात की जाए, मेरी बातें ध्यान से सुनना क्योंकि एट द एंड में कुछ क्वेश्चन अराइज करूंगी आपसे, ठीक है। तो अगर हम इनके टाइम पीरियड की बात की जाए तो ये वो पर्सन है जो ऑलरेडी बहुत एज के हो चुके हैं, 65 एज के ये पर्सन है जो एम्परर बने हैं अपने दोनों भाइयों को हरा के, और ये इतना एडमिनिस्ट्रेशन पे ध्यान नहीं देते हैं, ठीक है। तो ये इतना एडमिनिस्ट्रेशन पे ध्यान नहीं देते हैं और इनको पता नहीं चलता कि एडमिनिस्ट्रेशन में क्या चल रहा है, क्या इनके टाइम पीरियड में हो रहा है क्या नहीं, ठीक है। तो बेसिकली इनको क्या कहा जाता था उस वक्त, शाह बेखबर, क्या बोला जाता था, शाह ए बेखबर। बेसिकली अगर हम इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन करें, द इग्नोरेंट किंग, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ ध्यान नहीं दिया, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, तो इनको कहा जाता था कि शाह बेखबर। कई बार ऐसा भी कहा जाता था कि शाह आए बेखबर, कि शाह आए बेखबर, इनको कुछ पता ही नहीं होता था। तो अब 65 इयर्स की तो एज हो ही चुकी है, तो उन्होंने ऐसे कोई लड़ाइयाँ वगैरह नहीं लड़ी हैं, तो उसमें बिलीव नहीं करते थे। तो कौन सी पॉलिसी हम अपनाई इन्होंने, ठीक है। तो हम थोड़ा दिमाग से लगा के चलेंगे कि पहले इतने बूढ़े हो चुके अब क्या लड़ाइयाँ करेंगे इस वक्त, क्या बैटल वॉर में तो नहीं उलझे होंगे, राइट। तो ऑब्वियसली इस एज में पहुंचकर हर एम्पायर चाहेगा कि वो
शांति से अपना राजपाट चलाए। तो दैट वाज ऑल ही वांटेड। ओके, सो इन दैट केस इन्होंने क्या किया, कॉम्प्रोमाइज की पॉलिसीज को अपनाया, ठीक है, कंसिलेशंस करने की कोशिश की। कंसिलेशंस किसके साथ करेंगे, जो बाकी अदर स्टेट्स थी, बीट राजपूत, सिख्स और मराठास, बुंदेलास, जाट, वगैरह जो भी जितने भी लोग थे अदर, ठीक है, उनके साथ उन्होंने कंसिलेशन पॉलिसीज अपनाने की कोशिश की थी। ठीक है, इतना समझ आया कि बहादुर शाह ने क्या किया था, कॉम्प्रोमाइज और कंसिलेशन पॉलिसीज अपनाई। एडमिनिस्ट्रेशन पे इतना ध्यान नहीं देते थे और शाह बेखबर के नाम से इनको जाना जाता था। ठीक है, ओके। सो अगर हम सिक्स के बारे में बात करें तो गुरु गोबिंद सिंह जी जो थे उस वक्त वो 10th गुरु जिन्हें कहा जाता है सिक्स का, उनके साथ उन्होंने काफी रिकंसिलेशन कर लिया था, काफी कंसिलेशन था उनके साथ, काफी मतलब बैठी हुई थी उनके साथ इनकी। ठीक है, एंड उन्होंने गुरु गोबिंद सिंह जी को हाई मनसब भी असाइन किया था। बट इट वॉज द टाइम पीरियड जब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी जो लास्ट गुरु थे सिक्स के, उनकी डेथ हो जाती है। एंड आफ्टर दैट अंडर द बंदा बहादुर की लीडरशिप सिक्स फिर से अगेंस्ट हो जाते हैं मुगल्स के। ठीक है, हमें पता है कि वो शुरू से ही मुगल्स के अगेंस्ट थे, वो फिर से अगेंस्ट हो जाते हैं, तो वो प्रॉब्लम्स इनको फेस करनी पड़ रही हैं। ठीक है, उस साइड से राजपूत हैं, ठीक है, राजपूत के ऊपर ही कंट्रोल करना तो चाहते हैं पर कर नहीं पाते हैं। व्हाई? वी नो दैट कि राजपूत काफी यूनाइटेड थे। एंड किस बात में यूनाइटेड थे कि ये डिमांड करने के लिए कि हमें क्या चाहिए, हमें ज्यादा हिस्सेदारी चाहिए, हमें ज्यादा मनसबदारी चाहिए, हमें ज्यादा राइट्स चाहिए। ठीक है, तो वो ये डिमांड करते थे, दो ये उनकी डिमांड्स को पूरा नहीं कर पाए। ठीक है, तो मतलब इतना वो ये नहीं कर पाए उनके साथ कंसिलिएशन जैसा वो मांग रहे थे। ठीक है, राजपूत के साथ। ओके, उसके बाद मराठास के साथ भी उन्होंने है ना अपना कंसिलिएशन पॉलिसी और कॉम्प्रोमाइज करने की कोशिश की। जो मराठास थे इनकी पॉलिसी के साथ भी वो भी सेटिस्फाई नहीं रहे थे। ओके, तो ये थे आपके कौन, ये थे आपके शाह ए बेखबर, दैट वाज बहादुर शाह फर्स्ट। ठीक है, इनके बारे में समझ आया कि इनकी स्टोरी क्या थी। सिर्फ 707 से 1712 का इनका टाइम पीरियड है, ज्यादा कुछ खास नहीं किया है, 65 की ऑलरेडी एज है। कॉम्प्रोमाइज एंड कंसिलिएशन पॉलिसीज को अपनाकर अपना एम्पायर को चला रहे हैं। सिक्स राजपूत, मराठा, चंडेला सबके साथ कॉम्प्रोमाइज पॉलिसीज करते हुए देखा गया था इनको। ठीक है, एंड बाद में 1712 में क्या होता है, इनकी डेथ हो जाती है। ओके, 1712 में इनकी डेथ होने से इनका टाइम पीरियड क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। एंड अगेन आई टोल्ड यू द बिगेस्ट प्रॉब्लम ऑफ द मुगल एम्पायर कि जैसे डेथ होती है अब वॉर ऑफ सक्सेशन शुरू हो जाता है। इसके बाद कौन आते हैं, जहांगीर शाह। टुडे आई एम जस्ट गिविंग यू अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन। ठीक है, बहुत सारे नाम हैं, ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे रही हूँ, कल हम ये फिर से करेंगे। अब जहांगीर शाह आते हैं। ठीक है, ये काफी क्लेवर थे। ठीक है, इन्होंने भी क्या किया और फ्रेंडली पॉलिसीज अपनाते हैं। राजपूत, मराठा, जितने भी हिंदू थे, जितने भी अदर राजा थे, उनके लिए ये उनके साथ ये फ्रेंडली पॉलिसीज अपनाते हैं और एक्चुअल में ये सक्सीड भी होते हैं। ठीक है ना, ये एक्चुअल में उनको खुश करने में भी सक्सीड होते हैं। ओके, तो बड़ा अच्छा एक नोबेल था इन्होंने जिन्होंने इनका साथ दिया, दैट वाज जुल्फिकार खान। जुल्फिकार खान का नाम अगर व्हेनेवर मैं आपसे पूछूं तो आप किसके साथ असाइन करोगे, जहांगीर शाह के साथ असाइन करोगे। ठीक है, तो बेसिकली इन्होंने समझा, ये काफी क्लेवर थे, समझदार थे, पर आप देख सकते हो इनका टाइम पीरियड बहुत कम था। ठीक है, क्या इन्होंने क्या किया अपने इस टाइम पीरियड में, जो भी औरंगजेब की जो भी पॉलिसीज हार्श पॉलिसीज थी वो उन्होंने छोड़ दी थी इनको। ठीक है, उनको खत्म कर दिया था और जो भी अकबर की पॉलिसीज थी उनको अपनाया था इन्होंने। ठीक है ना, काफी लिबरल पॉलिसीज हमने देखी है अकबर की, जबकि अगर औरंगजेब की बात की जाए वो काफी एक्सप्लॉयटेटिव पॉलिसीज थी। ठीक है, तो उन्होंने अकबर की पॉलिसीज को अपनाया था। ओके, जुल्फिकार खान नाम है से जुड़ा है इनका, इनके टाइम पे देखने को मिलता है अकबर की पॉलिसीज को ये यूज करते हैं। ठीक है, और जैसे कि जो जिजिया टैक्स है उसको ये अबॉलिश कर देते हैं। ठीक है, बट एक गलती कर देते हैं, ये क्या गलती करते हैं, एक ऐसा सिस्टम लेकर आते हैं जिसको क्या कहा जाता था, रेवेन्यू फार्मिंग।
ठीक है, कौन सा सिस्टम लेकर आते हैं? एक रेवेन्यू फार्मिंग सिस्टम लेकर आते हैं, जो उनकी सबसे बड़ी गलती थी। ये सिस्टम क्या था बेसिकली कि आपने रेवेन्यू फार्मर्स को आप अडॉप्ट कर लेते हो, ठीक है। आप उनको बोल देते हो कि हम आपसे एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ टैक्स आपसे लेंगे। इन रिटर्न वो रेवेन्यू फार्मर्स आगे फार्मर से कितना भी टैक्स है वो ले सकते थे, ठीक है। तो ये काइंड ऑफ जो सिस्टम था टैक्स कलेक्शन का, ये सबसे ज्यादा बुरा था। क्यों? क्योंकि इनको तो जो भी बंदे साइन किए गए थे, इनको सिर्फ एक फिक्स टैक्स देना होता था मुगल्स को। बट इस सिस्टम की वजह से जो एक्चुअल पीजेंट्स थे, उनको बहुत प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी, उनको बहुत एक्सप्लोटेशन फेस करना पड़ा। दैट वाज द बिगेस्ट मिस्टेक ऑफ दिस रूलर, ठीक है। तो बेसिकली होता क्या है, कैसे क्राइम खत्म हो जाता है? इनके ही नेफ्यू होते हैं। मैम जुल्फिकार इज फ्रेंड। सॉरी मैम, जुल्फिकार इज द फ्रेंड ऑफ शारदा शाह। I don't get it. Ma'am, I mean Zulfi Khan is a friend of Shadar Shah. I said he was a nobleman. Like he used to help the Jahandar Shah in the administration. तो basically administration में जो finance part होता है ना, जो finance part होता है administration का, उसको कौन handle करता था? वो जुल्फिकार खान जो थे वो handle करते थे, basically उनका काम था, ठीक है। सबसे मेन पार्ट जो था फाइनेंस का, वो इसमें हेल्प करते थे। बिसाइड्स द फाइनेंस पार्ट, वो और भी एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिसीज में योगदान देते थे, ठीक है। Yes, ma'am. Can you repeat the revenue farming one? या रेवेन्यू फार्मिंग में क्या होता है? इसको हम रेवेन्यू फार्मिंग को बोलते हैं इजारा। ये इजारा सिस्टम था, इसको रेवेन्यू फार्मिंग बोला जाता था। वाई? कि इसमें क्या होता था कि रेवेन्यू फार्मर्स को हम इनको अपॉइंट कर लिया जाता है, ठीक है। इन रेवेन्यू फार्मर्स को अपॉइंट कर लिया जाता है फॉर टैक्स कलेक्शन, मतलब रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए, ठीक है। रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए इनको अपॉइंट किया जाता है, ठीक है। अब ये किससे कलेक्ट करते हैं? फार्मर से, ठीक है। अब देखो, मुगल्स को इनको अपने एम्परर को इनको एक फिक्स्ड टैक्स जो रेवेन्यू था वो देना होता था, ठीक है। एक फिक्स्ड ये रेवेन्यू अपने एम्परर को जमा करवा देते थे। बट इन रिटर्न क्या ये उतना ही फार्मर से लेंगे? नहीं, ये जितना चाहे, जितना मर्जी है ना, फार्मर से अपना जो टैक्स था, रेवेन्यू था, वो कलेक्ट कर सकते थे। ये इनके पास राइट था, ओके। इसके दो फायदे हैं। देखो, मे बी इन दैट पर्टिकुलर ईयर हो सकता है बहुत अच्छी खेती हुई हो फार्मर्स की और उनके पास बहुत ज्यादा रेवेन्यू कलेक्ट हुआ हो, तो इन दैट केस ये एम्परर को तो कम रेवेन्यू है ना देंगे, क्योंकि ऑलरेडी फिक्स्ड है, ठीक है। द रेवेन्यू परसेंटेज इज ऑलरेडी फिक्स्ड। इन दैट ईयर ये उनको कम रेवेन्यू देंगे और ये खुद जो रेवेन्यू फार्मर्स होंगे आधा रेवेन्यू खा जाएंगे। बट इन सम ईयर्स ऐसा भी हो सकता है कि खेती फार्मर्स की बिल्कुल भी ना हुई हो और इनको रेवेन्यू बिल्कुल भी इकट्ठा ना हुआ हो, ठीक है, बट फिर भी इनको एम्परर को देना पड़े, ठीक है। मतलब ये दोनों साइड में जाता है, एवरी कॉइन हैज टू साइड्स ना, तो इट हैपेंस इन दैट वे। तो दिस सिस्टम वाज कॉल्ड एज इजारा सिस्टम, बट ड्यूरिंग हिज पीरियड आई थिंक द फार्मर्स की खेती थी वो अच्छी हुई थी। इन दैट केस इनको बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइट किया गया था, बहुत ज्यादा रेवेन्यू चार्ज किया गया था बाय द रेवेन्यू फार्मर्स, पर इतना कभी जो एम्परर के ट्रेजर में कभी पहुंचा ही नहीं। तो ये काफी फेल सिस्टम था रेवेन्यू कलेक्शन का। Okay. That was the biggest mistake of this, ठीक है। तो आई वाज टॉकिंग कि इनके नेफ्यू थे, दैट वाज फरुख सियार। इनके नेफ्यू थे फरुख सियार जो इनको मार देते हैं, ठीक है। इनको मारने के बाद अब वो क्या हो जाते हैं? नेक्स्ट रूलर बन जाते हैं, ठीक है। इनके नेफ्यू थे फरुख सियार, इनको मारने के बाद नेक्स्ट रूलर बनते हैं, ओके, फरुख सियार। तो बेसिकली ये जो अगर जब भी आपका साथ फरुख सियार की बात की जाए, यू विल ऑलवेज टॉक अबाउट द सैयद ब्रदर्स। किसके बारे में बात करेंगे हम?
सैयद ब्रदर्स, क्योंकि सैयद ब्रदर्स की हेल्प से ये राजा बनते हैं, ये जहांगीर शाह को मारने में सक्सीड होते हैं। और जो सैयद ब्रदर्स हैं उनको हिस्ट्री में ना किंग मेकर के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? किंग मेकर्स। कहते कहा जाता है कि उनको वो किंग बनाते थे एक्चुअली में। ये सैयद ब्रदर्स थे जिनकी हेल्प से ये थ्रोन पर आते हैं। ठीक है, जो सैयद ब्रदर्स होते हैं इनके थ्रोन पर आने के बाद एक ब्रदर है वो वजीर बन जाता है और एक ब्रदर को मीर बख्शी की पोस्ट दी जाती है। अब जो कमांडर होता है आपकी मिलिट्री में, उसका जो हेड होता है उसको मीर बख्शी कहा जाता था। ठीक है, तो ये दोनों ये मेजर जो पोजीशन थी उनको हायर कर लेते हैं। ठीक है, अब ये बहुत ज्यादा टैलेंटेड पीपल थे, ये बहुत ज्यादा समझदार थे, काफी इनको पता था कि एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलाना है। ठीक है, क्या पॉलिसीज, एग्जैक्ट पॉलिसीज अप्लाई करनी चाहिए, राइट। तो उन्होंने काफी रिलीजियस टॉलरेंस पॉलिसीज को अडॉप्ट किया था और बाकी जितने भी आपके अदर्स एम्परर थे उनके साथ कंसिलेशन बना के चले थे ये। ठीक है, एंड ये वही टाइम है, ये टाइम वो भी है जहां पर ईस्ट इंडिया कंपनी आपको देखने को मिलती है। कहाँ पर? बंगाल में देखने को मिलती है और वहां पे वो ट्रेड कर रही है। ठीक है, तो उनको फर्रुखसियार क्या करता है, ट्रेडिंग प्रिविलेजेस और भी ज्यादा क्या कर देते हैं बंगाल में, इंक्रीज कर देते हैं। ठीक है, ये वो रूलर हैं जो बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी के जो राइट्स हैं उनको इंक्रीज कर देते हैं, जिसका आगे चल के बहुत ज्यादा हमें क्या होता है, नुकसान देखने को मिलता है। ठीक है, एक और किंग करेंगे इसके बाद, देन वी विल एंड अप। फर्रुखसियार के बाद आते हैं हमारे पास मोहम्मद शाह। कौन आता है हमारे पास? मोहम्मद शाह। ये काफी प्लेजर टाइप इंसान थे, इनको प्लेजर बहुत पसंद था। ठीक है ना, तो इसलिए इनको है ना प्लेजर लवर भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये भी बेसिकली जो फर्रुखसियार था वो सैयद ब्रदर्स की हेल्प से बना था, बट विद टाइम क्या देखने को मिलता है कि वो उनके सैयद ब्रदर्स के अकॉर्डिंग काम नहीं कर रहा था। तो इस वजह से क्या होता है एंड कि सैयद ब्रदर्स ही क्या करते हैं, इस रूलर को क्या कर देते हैं, मार देते हैं। ठीक है, ये फर्रुखसियार को मार देते हैं। ये पहली बार हिस्ट्री में हुआ था कि कोई नोबेल्स ने एम्पर को मार दिया। ठीक है, तो उसके बाद ये सैयद ब्रदर्स अब किसको राजा बनाते हैं, मोहम्मद शाह को राजा बनाते हैं। ठीक है, पहले फिर वही बात होती है, मोहम्मद शाह सैयद ब्रदर्स के अकॉर्डिंग काम करता है, बहुत अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा था। बट वी नो दैट कि जब कोई इतनी पोजीशन पे पहुंच जाता है उसके दुश्मन भी बन जाते हैं। इनके अलावा जो और भी जो नोबेल्स थे वो इनके राइवल्स बन जाते हैं, इनके अगेंस्ट कॉन्स्पिरेसीज की जाती हैं। मोहम्मद शाह के कान भरे जाते हैं, उनको बोला जाता है कि यू आर नथिंग एंड सैयद ब्रदर्स आर एवरीथिंग, एंड वो तुमसे राज्यपाट छीन लेंगे लाइक दैट। तो मोहम्मद शाह नोबेल्स के साथ मिलकर, बेसिकली नोबेल्स के साथ प्लस एक मराठा के साथ मिलकर इन सैयद ब्रदर्स को मारने की प्लानिंग की जाती है और फिर सैयद ब्रदर्स की स्टोरी यहाँ पे खत्म हो जाती है। ओके, so this happened actually in the history. ठीक है, तो बेसिकली इनका टाइम पीरियड था हमारे पास। ओके, देखते हैं हमने अब तक क्या क्या किया। हमने देखा कि बाबर से औरंगजेब का समय था 1526 से 1707। औरंगजेब के मरने के बाद फिर से वॉर ऑफ सक्सेशन शुरू हो जाता है और जिसमें से उनके एक बेटा बाकी दोनों भाइयों को हराने के बाद एम्परर बन जाता है, हु वाज बहादुर शाह फर्स्ट एट द एज ऑफ 65, whose time period was nothing but a very short span, that is of 5 years. ठीक है, उसके बाद आते हैं हमारे पास जहांगीर शाह, वो भी वॉर ऑफ सक्सेशन से निकल कर आते हैं। इनका टाइम पीरियड बहुत छोटा है, इनके टाइम पे बहुत अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर देखने को मिलते हैं, दैट वाज जुल्फिकार खान जो इनकी मदद करते हैं। ठीक है, अकबर की पॉलिसीज को ये अडॉप्ट करते हैं, औरंगजेब की जो पॉलिसीज है उनको अबैंडन किया जाता है। एक नया रेवेन्यू कलेक्शन सिस्टम लेकर आते हैं, दैट इज रेवेन्यू फार्मिंग सिस्टम और वी कैन से इजारा सिस्टम, राइट। बाद में क्या होता है, इनकी नेफ्यू फर्रुखसियार इनको मार देते हैं विद द हेल्प ऑफ सैयद ब्रदर्स और वो क्या हो जाते हैं, फिर थ्रोन पर आ जाते हैं, राइट। बट फर्रुखसियार उनके अकॉर्डिंग सैयद ब्रदर्स के अकॉर्डिंग काम नहीं करते हैं, ही वाज द किंग जिसको सैयद ब्रदर मार देते हैं। कई बार आपको मैं अगर स्टेटमेंट पूछूं
कि किस राजा को पहली बार ऐसा हुआ था कि किसने मारा था या किस राजा को मारा गया था, ठीक है। सो ही वाज फर्रुखसियाब, ठीक है। फिर मोहम्मद शाह आते हैं, ठीक है, एंड ये भी सैयद ब्रदर्स की हेल्प से ना थ्रोन पर आते हैं, बट आफ्टर दैट यही कॉन्स्पिरेसीज करते हैं सैयद ब्रदर्स के खिलाफ, और फिर विद द हेल्प ऑफ वन मराठा, एक मराठा की हेल्प के साथ सैयद ब्रदर्स को मार दिया जाता है। So all that happened till 1748. Are we clear with this? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. हमको बहुत मोटा मोटा फैक्ट्स याद करने, इसमें से कुछ आता नहीं है, ठीक है। इफ यू विल गोइंग टू आस्क मी कि यहाँ से क्वेश्चन आएगा, एमसीक्यू आएगा, नहीं, ठीक है। बहुत कम चांसेस होते हैं कि यहाँ से आए, ठीक है, या बट हमें हर एक चीज पता होनी चाहिए, क्योंकि स्टोरी जब तक पता नहीं होगी हम एनालिसिस भी तो नहीं कर पाएंगे ना। ओके, तो ये चीज देख रहे हैं हम, कमियां देख रहे हैं, देखो फ्लॉज देख रहे हैं कि क्या हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देख रहे हो कि कैसे एक राजा को बना दिया आपने, बहादुर शाह को आपने राजा बना दिया एट द एज ऑफ 65, जहाँ पे पहले ही बहुत प्रॉब्लम्स चल रही हैं इंडिया में, और आपने इस पर्सन को राजा बना दिया जहाँ पे वो कॉम्प्रोमाइज करने की बात कर रहा है, ठीक है। बट अब ये टाइम बहुत लेट हो गया कि ये राजपूत मराठा उन पे भरोसा नहीं करते, मराठास पे। और फिर वॉर ऑफ सक्सेशन की प्रॉब्लम आप देख रहे हो, एक दूसरे को मार के राजा बनने की कोशिश करता है, ठीक है। दूसरा आप देख रहे हो कि इनको अपने ही नोबेल्स पर क्या है, भरोसा नहीं है, और दूसरे नोबेल्स जो राइवल्स होते हैं उनकी बातों में आकर अपने ही नोबेल्स पर ये शक करते हैं। और फिर नोबेल्स को हमने क्या देखा, सैयद ब्रदर्स को हमने देखा कि मारते हुए देखा, फर्रुखसियाब मारा जाता है। अगर ये सैयद ब्रदर्स के अकॉर्डिंग चलते तो कहा जाता है कि शायद हिस्ट्री कुछ और होती। मैं शायद ये लाइन बहुत बार बोलने वाली हूँ कि कुछ इवेंट्स होते हैं हिस्ट्री में कि शायद अगर ये ना हुआ होता तो शायद हमारी हिस्ट्री कुछ और होती, ठीक है। कुछ टर्निंग पॉइंट्स होते हैं, है ना, हमारी हिस्ट्री में। तो शायद ये भी वही था कि अगर सैयद ब्रदर्स ना मरे होते तो शायद हमारी हिस्ट्री कुछ और होती, ठीक है। तो इनका एडमिनिस्ट्रेशन तरीका बहुत अच्छा था, बट द राइवल्स बहुत ज्यादा बढ़ गए थे, और जिसकी वजह से इनकी कॉन्स्पिरेसी की गई और इनको मार दिया गया। ओके, तो ये अभी तक हमने देखा है, एंड रेस्ट वी विल डू टुमारो। टुमारो वी विल मीट एट एक सेकेंड, लेट मी चेक, एट 4, ठीक है। टुमारो हम 4 बजे मिलने वाले हैं, ठीक है। एंड वी विल ट्राई कि हम जो इसका फर्स्ट चैप्टर है, मॉडर्न हिस्ट्री का जो फर्स्ट चैप्टर है, वो हम कंप्लीट करेंगे। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस चैप्टर आई विल शेयर द, आपको वो नोट्स रिवाइज करने हैं, ठीक है। 4 to 6 बेसिकली सेशन होगा। मैम हेलो। यस यस प्लीज। मैम चैप्टर 1 है सोर्सेस फॉर द हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया, स्पेक्ट्रम में है, वही है ना मैम? नहीं, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द सोर्सेस, आई एम डायरेक्टली टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट चैप्टर दैट इज डिक्लाइन। बट स्पेक्ट्रम में तो डिक्लाइन नहीं है मैम, इसीलिए तो बिपिन चंद्र में होगा। Yeah, I'm talking about the first chapter in the Bipan Chandra. We will also cover that chapter. Whatever name is, don't worry, we will cover everything. Okay. So okay, we have just created a small plot, brief plot कि क्या कैसे कहानी चल रही है उस वक्त इंडिया की, और कैसे हम तैयारी कर रहे हैं अपने ही देश को किसी और के हाथों में देने की, ठीक है। जस्ट अ प्लॉट हैज बीन क्रिएटेड नाउ, वो भी अभी प्लॉट अभी पूरा नहीं हुआ है। तो कल हमारा 4 से 6 हम ये फर्स्ट चैप्टर जो बिपिन चंद्र में होता है ना, डिक्लाइन ऑफ मुगल्स, तो बेसिकली वो हम देखने वाले हैं, वो कंप्लीट करेंगे। ओके, जिसमें हम पूरी मुगल्स की कहानी देखी जाएगी, क्या क्या उन्होंने मिस्टेक्स की, क्या गलतियां कर रहे हैं कि मुगल्स नहीं रहे, डिक्लाइन देखने को मिला है। आफ्टर दैट वी विल अरेंज द होल पॉइंट्स, होल रीजंस कि क्या कारण थे जिसकी वजह से डिक्लाइन हुआ है, ठीक है। एंड 4 से 6 सेशन होगा, एंड आफ्टर दैट आई विल शेयर नोट्स। मैं ये नोट्स आपके साथ शेयर कर दूंगी, उसके बाद रिवाइज दीज नोट्स, ठीक है। एंड डे आफ्टर टुमारो ऑन मंडे आपका क्विज होगा।
मैम आज का क्या स्टडी है मैम? वही चैप्टर 1 ना मैम? Yes, I am telling. I will share in the channel, right? मंडे को हम इसी जितना भी हमने पढ़ा होगा उसका क्विज लेंगे, प्लस ट्यूसडे को क्या होगा, ट्यूसडे को, ठीक है, ट्यूसडे को आपका आंसर राइटिंग प्रैक्टिस होगा, जितना भी हमने अभी तक पढ़ा होगा। आई विल गिव यू अ क्वेश्चन, ठीक है, तो वो मैं आपको क्वेश्चन वैसे मैं आपको कल ही बता दूंगी, ठीक है, कल या फिर शायद बाद में एक दिन बाद मैं आपको वो क्वेश्चन दूंगी लिखने के लिए, वो आपको लिखना है, ठीक है। आफ्टर दैट ट्यूसडे को मैं आपको टाइम दूंगी लिखने का, एंड आप ट्यूसडे और वेडनेसडे को आप मेरे साथ वो क्वेश्चन शेयर कर सकते हो अपनी पीडीएफ बना के, जितनी जल्दी वो शेयर करोगे, ठीक है। आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, इसकी पीडीएफ बनानी है, देन शेयर, जितना जल्दी शेयर करोगे मेरे साथ उतना जल्दी मैं उसको चेक करके आपको वैल्यूएट करके आपको बता पाऊंगी, राइट। प्लस उसके बाद आई थिंक या तो रेस्ट हम फिर से अपना नेक्स्ट फ्राइडे सैटरडे या संडे को नेक्स्ट वीकेंड पे हम मिलेंगे, एंड वी विल कंटिन्यू विद द फर्दर पार्ट, एंड आई विल शेयर अबाउट द असाइनमेंट्स, जो भी हमारी एनसीईआरटी की असाइनमेंट्स हैं वो मैं आपको चैनल में जरूर शेयर करूंगी, वो आपको जरूर करनी है। हमारे ऑनलाइन सेशन में, लाइव सेशन में जो भी चल रहा है दैट इज अ सेपरेट पार्ट, जो हमारी बेसिक बुक है वो हम जरूर कवर करने वाले हैं एवरी डे। ओके मैम, ठीक है। ओके, लेट मी आस्क वन मोर थिंग, यू गाइज, मैम हेलो, are you guys okay with the PPTs or the docs? मैम डॉक्स मैम। बोलो, सभी बोलो, are you guys okay with the PPT or docs? Answer me fast. Anything ma'am? Yeah. PPTs would be the much better. अब ये 50-50 हो गया, बिकॉज हिस्ट्री पार्ट है, पीपीटी में थोड़ा मजा आता है बच्चों को पढ़ने में, ठीक है। डॉक्स इजी हो जाती है अगर किसी को प्रिंट आउट निकालना हो, ठीक है। तो क्या आई ट्राई, देखते हैं क्या होता है, आई शेयर अकॉर्डिंगली विद यू। हु वाज आस्किंग समथिंग, कौन सा कुछ पूछ रहा था? मैम अन्या, मैम आई हैव वन डाउट। प्लीज बोलिए। मैम वो पूछ रहे थे कि अगर उसने सैयद ब्रदर्स ने 2 लोगों को मदद किया राजा बनने में, तो वो दोनों खुद ही क्यों नहीं बन गए मैम? नहीं, एक्चुअली दे वर द सैयद ब्रदर्स, ठीक है। एंड जो आप मुगल एम्पायर में हो, ठीक है, एंड उस वक्त जो नोबेल्स थे वो ना तुरानी रीजन के थे, या फिर अलग अलग, मतलब द रिलीजन फैक्टर बहुत ज्यादा था उसको, ठीक है ना। तो अब सोचो सिर्फ उनके हेल्प करने की वजह से ही उनके इतने ज्यादा राइवल्स बन गए, तो अगर खुद एम्परर बन जाए तो बात नहीं बनेगी ना। एम्परर कौन बनेगा? मुगल एम्परर। हम यहाँ पे मुगल एम्पायर की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो कोई एक मुगल ही एम्परर, ठीक है। तो नोबेल सिर्फ जरिया होते थे, दो नोबेल ज्यादा स्ट्रॉन्गर होते थे एम्परर से, वो नाम के एम्परर होते थे, ठीक है। सिर्फ ये दो नहीं थे जिन्होंने जिसकी हेल्प की थी सैयद ब्रदर्स ने, 3-4 और बीच में राजा थे जिनको उन्होंने बनाया था जल्दी जल्दी में राजा। कईयों की क्या होती है, बीच में इमरजेंसी की वजह से, कुछ हेल्थ इश्यूज की वजह से नेचुरल डेथ हो जाती है, कईयों को ये खुद फिर से मार देते हैं और फिर तीसरी चौथी मोहम्मद शाह को लेकर आते हैं। इट्स अ वेरी लॉन्ग स्टोरी, आई विल टेल यू एवरीथिंग, ठीक है ना। या क्योंकि इतना मैं अभी टाइप नहीं कर सकती हूँ, तो जैसे हम कल बात करेंगे तो आपको सब कुछ पता चलेगा कि क्या चीज चल रही है एक्चुअली में। मैम अगर हमें आई मीन सम नेम्स वी कांट remember what we have to do? Don't worry about that. I would say don't worry about that. जब आप जितनी बार ये रिवाइज करोगे ना, ये चीजें अपने आप दिमाग में बैठ जाएंगी। जहां शारी ये था, सैयद ब्रदर्स ये थे, ये अब फर्स्ट टाइम ये बहुत अलग नाम लग रहे हैं, फर्स्ट टाइम आप सुन रहे हो, ठीक है। पर आप ये सिर्फ एक बार पढ़ने वाले नहीं हो, यू विल गोइंग टू रीड एंड रिवाइज दिस टॉपिक्स अ लॉट ऑफ टाइम्स। मैं बहुत बार रिवाइज करवाने वाली हूँ आपसे, और आपको ये चीजें अपने आप याद हो जाएंगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। Yes, okay. Later in coming days you will only take hardly 10 to 15 minutes
इस इंटायर चैप्टर को कंप्लीट करने में। रिवाइज करने के लिए आपको 10 से 15 मिनट लगेंगे, दैट आई गारंटी। जिस तरह से मैं करवाऊंगी ना, जिस तरह से आप करोगे स्पेशली, तो आपको हार्डली 10 से 15 मिनट लगेंगे इसको करने में। ठीक है? ओके मैम, ओके मैम। ओके मैम। तो आपको कल का शेड्यूल पता चल गया है गाइस। ये हमारा शेड्यूल है 4 बजे वाला, ऐसे हम काम करने Okay, वाले हैं। रेस्ट आई विल शेयर द असाइनमेंट इन हाफ एन आवर और 1 आवर ऑन द चैनल। कि आपको क्या काम करना है वो मैं आपको शेयर कर दूंगी। ठीक है? ओके मैम। ओके मैम। ओके, thank you so much everyone for joining. I Thank you really मैम। appreciate your dedication and hard work. I would wish you a very good luck for this preparation, and I'll help you whatever I can, and you also have to give your best ताकि हम इस एग्जाम को अच्छे से क्रैक कर पाए। ठीक है? यस मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। Thank you everyone.